رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے۔ سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، طریقے سے کھلا رہے ہیں، ہلکے بن رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا کے بیان میں ہم نے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم نے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ رمضان اعتکاف کو بھی دل بہت چاہ رہا تو پر الحمدللہ بس میں یہی سمجھوں گا کہ مرشد نے بلایا اپنے قدموں میں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم ادھر ہی بس مرشد کے قدموں میں رہ جائیں۔ اب ادھر آیا ہوں، ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہا ہوں 5 ٹائم کی، تہجد بھی۔ کئیوں کے ساتھ جانا بھی ہوتا رہا لیکن ادھر نماز کی پابندی نہیں ملی۔ میں نے دعوت اسلامی میں ایک مین چیز دیکھی ہے نا، وہ یہ دعوت اسلامی ایسا ماحول ہے کہ حالانکہ حالت سفر میں بھی باقاعدہ ہم نے نماز کو ادا کیا اور ادھر پہنچے، ادھر بھی باقاعدہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ چلے جاتا ہے، ان کو اٹھایا نہیں جاتا یا ان کو سمجھایا نہیں جاتا، ادھر باقاعدہ جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھا دیا جاتا ہے کہ سلام بھائی نماز کی تیاری کرے اور نماز کو پڑھے۔ آج سے 2 سال پہلے اعتکاف کیا تھا میں جاڑی شریف میں، تو بس وہ بیٹا میرا 8 میں پڑھ رہا تھا APS میں، تو اس کا بھی شوق آ گیا، اس نے بھی 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اب 10 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد اس نے کہا میں بس APS میں جانا نہیں چاہتا، میں تو جاؤں گا دعوت اسلامی کے بیچ میں جا کر وہاں انشاءاللہ دونوں سبق پڑھوں گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ 3 سال ہوں گے ان سے، وہ اس وقت تیسرے پارٹ میں ہے۔ ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں اس کو نیکیوں میں گزارنا ہے، اپنے وقت کو ہم نے اہمیت دینی ہے، اس کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے ہم نے اللہ پاک کی باتوں میں گزارنا ہے۔ ابھی میرے کو بہت ایسا لگا ہے میں ساری زندگی ادھر ہی رہ جاؤں، گھر بھی نہیں جاؤں، اتنا فیض میرے کو اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آیا ہوں فیضان مدینہ میں، تو دیکھ کر بس یہ دل کہتا ہے کہ ساری زندگی بندہ یہاں بیٹھ جائے اور اسی فیضان مدینہ میں خدمت کرتا رہے لوگوں کی، بس یہاں سے واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ بالخصوص میں ان نوجوانوں کو جو کالج اور اسکول یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا ماحول اچھا کون سا اچھا۔ میں ان کو یہ دعوت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے، یقین جانیں یہاں دعوت اسلامی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے جام بھڑ کے دیے جاتے ہیں۔ میری محبت جو ہے وہ پیر صاحب کے ساتھ ہے۔ پیر صاحب کا نورانی چہرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے، ہم تو مدنی چینل پہ دیکھتے تھے پیر صاحب کو، تو بڑا دل تڑپتا تھا کہ کب جا کر نگران شورا اور پیر صاحب کے ساتھ ہم صفحہ کریں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں لایا ہے، پیر صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، نگران شورا کو دیکھا ہے، دل بہت خوش ہوا ہے۔ یہی نیت لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ پورا ماہ گزار کر کچھ نہ کچھ سیکھ کر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے، اور ماشاءاللہ آئے ہیں اور تربیت کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے۔ ادھر جو ہے وہ بندے کی کافی زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے، بندے کو قرآن پاک درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے، خوب نیکیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بڑی تمنا تھی کہ کراچی میں جا کے اعتکاف کریں گے تو سعادت مل گئی الحمدللہ۔ دیگر جگہ بھی اعتکاف کیا ہے لیکن وہ برکتیں نہیں ہیں جو فیضان مدینہ کے اندر برکتیں آئی ہیں ماشاءاللہ۔ جدھر میں کام کرتا تھا نا ادھر ہم اجتماع پہ آتے تھے، تو اسلامی بھائی یہ کہتے تھے کہ عادل بھائی آپ ایسا کریں کہ 1 ماہ کا اعتکاف کر کے دیکھیں۔ اب میرا دل نہیں کرتا واپس جانے کو، میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ ادھر ہی انشاءاللہ کورس درس نظامی کروں گا انشاءاللہ۔ جب میں ادھر فیضان مدینہ میں داخل ہوا ہوں نا اسلامی بھائی، یقین کرے دل کی دنیا بدل گئی، اور جب میں نے حضرت صاحب کو دیکھا نا، دیکھتے ہی مجھے پتہ نہیں چلا اتنی زیادہ ٹینشنیں تھی، جب میں آیا تھا اتنی زیادہ ٹینشن تھی اور دلی سکون ملا، ٹینشنیں ختم۔ اب ایسے دل کو جو نا بس ذکر ہی سنتا رہے، یہ بیان سنتا رہے بندہ، یہ جو تلاوت قرآن پاک یہ سنتا رہے، اتنا زیادہ سکون۔ نماز تراویح کے بعد نوافل، اور یہ ماشاءاللہ عبادت کا بڑا ہی سلسلہ ہے۔ ابھی بھی مدنی مذاکرہ تھا، مدنی مذاکرے کے اندر ماشاءاللہ بڑے مدنی پھول تھے، اور ادھر سے بہت سی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت زیادہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں در مرشد پہ حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم خوب علم دین سیکھیں گے اور امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر آپ اکیلے یعنی تنہا میں، اگر آپ سے گناہ ہوتے ہیں، آپ
ایک ہی تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. امید ہے کہ آپ کئی گناہوں سے بچ سکیں گے. اور مار کاش خبر نیا دعوت اسلامی ما اولاد کو ما ہر شے سکھتے گوں نمازہ سکھتے گوں وضوء سکھتے گوں غسلہ طریقہ سکھتے گوں اولا مار خبر نیا کہ غسل تھرکا کنگی ہیں وضو تھرکا کنگی ہیں نماز تھرکا پڑ گئی ہیں اور مزائنانی عزت تھرکا کنگی ہیں کسائنانی عزت تھرکا کنگی ہیں. اللہ مہربانی دعوت اسلامی گورا ما آخ تو ہر شے سکھتے گوں. میں الحمدللہ اپنے اندر بہت بہتریاں دیکھیاں نے جدوں دا میں دعوت اسلامی دے ماحول چ آیا. الحمدللہ والدین دی بھی عزت کری دی اور اپنے اساتذہ دی عزت کری دی. جڑے اپنے وڈے لوگ نے انہاں دی بھی عزت کرے گی. مدنی مذاکرے میں اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے سنتا رہے بندہ. اتنا معلومات اتنی زیادہ معلومات ملتی ہے کہ یقین کرے اتنا دل کو سکون ملتا ہے ایسا سکون کہیں نہیں ملتا. الحمدللہ یہاں آئے ہیں اور بڑی بہاریں ہیں اور ہر طرف دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی مذاکرے کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ویسے ہی مبلغین کی طرف جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اپنے درس و بیان کی طرف سے کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رہے یہاں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پا کر ہی جائیں گے انشاءاللہ. تسی یہی سمجھ لو کہ جو بھی سانوں ملیا دعوت اسلامی دا صدقہ ملیا اس تو پہلے اسی دعوت اسلامی دے وچ آن تو پہلے اسی کچھ بھی نہیں سی. اسی جو بھی بنے دعوت اسلامی دے وچ آ کے بنے اور ہر دل ایک ارچی خواہش ہے دعوت اسلامی گورا انشاءاللہ مردم کا سکی کھوڑ انشاءاللہ گنجام باڑ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک کامیاب کرے دعوت اسلامی اور حضرت صاحب کو تندرستی صحت دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد کے اندر افطار نہیں کر سکتے. نیت کر لیجئے. اب عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. دلی میں اصل تو نیت ہو کہ میں نے سنت اعتکاف نیت کی. وہ یہ نیت آپ کی دل میں کہنے سے ہو گئی زبان سے نہ بھی کہا تو زبان سے کہنا تو اس وقت کام آئے گا جب دل میں نیت موجود ہو ورنہ زبان سے کہنا کام نہیں دے گا. یہ ہر نیت میں یہی ہے کہ دل میں نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ابھار کو. نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیت دل میں نہیں ہے تو آپ کہیں گے میں شاہ کی فرض پڑھ رہا ہوں تو وتر پڑھ رہا ہوں اور دل میں نیت مطلقاً ہے ہی نہیں ادھر ادھر کہیں بھٹک رہے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے کہ وہ نماز جو آپ نے پڑھی وہ ہوگی نہیں. فرض نہیں ادا ہوں گے نہ وتر ادا ہوں گے. تو دل میں نیت شرط ہے. یہ ہمیشہ کے لیے یہ نقطہ یاد رکھیے گا. تو مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہونا پانی پینا اس میں بھی یہی کہ نیت ہو تو اب کر لیں نیت اور افطار کر لیں. لیکن نیت کا ثواب نہیں ملے گا جبکہ آپ افطار کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے نیت کریں گے مسجد میں. تو بہتر طریقہ یہ کہ ثواب کے ارادے سے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں. پھر یا تو چاہے 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک آپ افطار وغیرہ کر لیں. اور جب مسجد میں آئے تھے داخل ہوتے وقت یہ عادت ہونی چاہیے کہ ثواب کے لیے نیت کر لیا کرے بندہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اس طرح یہ اعتکاف
कि नीयत शुरू हो गई। अब इफ्तार वगैरह का टाइम जब आया या खाने पीने की ज़रूरत पेश आई तो अब असर 9 यानी नए सिरे से नीयत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो चुकी नीयत और उसमें वो खाना पीना जायज़ हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पहले कोई नीयतें कर लेते हैं अच्छी अच्छी ताकि यहाँ जो हम कहें सुने उसमें भी सवाब हमें ज़्यादा ज़्यादा मिले। जो जो नीयत आपकी जहन में बनती है वो नीयतें करनी है। इधर उधर देखने, बातें करने और दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर इन्हें फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए और टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम को राज़ी करने के लिए तवज्जो से इल्म दीन की बातें सुनूंगा। जब जब सल्लु अलल हबीब कहा जाएगा तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहूंगा। आखिर तक यानी इलानात सलातो सलाम दुआ वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा, जबकि कोई मजबूरी ना हुई। खत्म होने के बाद मजबूरी ना हुई तो आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम व मुसाफहा करने यानी हाथ मिलाने, आइंदा भी आते रहने की दावत वगैरह की मुतालिक इनफरादी कोशिश करने का सवाब कमाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज 1445 हिजरी के माह रमज़ान की तीसरी रात है, 3rd। इस मुनासबत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 3 ज़ियाद दुरूद सलाम से, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूँगा। भूल करता पाए तो फौरन इस्लाह फरमाएं। भूल होते हुए टालम टोल से काम लेने के बजाय शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माह रमज़ान की आमद आपको बहुत मुबारक हो। एक बात लोगों में चलती है, इस पर आपसे मालूमात लेनी है कि रमज़ानुल मुबारक में गुस्सा बढ़ जाता है, तो क्या वाकई ऐसा है कि रोज़े में गुस्सा बढ़ जाता है? मशहूर तो यही है, मैंने अपने तौर पे तो नोट नहीं किया रोज़े में गुस्सा बढ़ता हो। अपनी ज़ात की तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कभी ये नोट नहीं किया कि रोज़ा है, भूख लगी है, प्यास लगी, किसी ने कोई बात मिजाज के खिलाफ कर ली तो काटला पकड़ लिया उसका, गरीबान पकड़ लिया और याड़ाउड़ी कर दी और शोर मचा दिया। आदत ये वैसे भी नहीं है इस तरह की आदत, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ हो तब भी, लेकिन इस तरह मैंने नोट किया। मशहूर बहुत है, ज़माने से सुना हुआ, किताबों में भी पढ़ा हुआ है। वो गुस्से की मतलब गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में उसको पकड़ लेते हैं कि भाई अब तो रोज़ा भी तुझसे ही खोलूँगा या तो तुझे खा डालूँगा। इस तरह लोगों की घूम जाती है रोज़े में बाज़ों की। अल्लाह बेहतर जाने, अगर कुरान और हदीस से ही साबित हो तो नहीं है इनकार, लेकिन पढ़ा सुना नहीं है, उलमा से भी नहीं सुना कि कोई ऐसी रिवायत इन्होंने बयान फरमाई हो। अब कोई आलिम साहब भी किताबों में तो लिख डालते हैं, तो वो क्या बात सुनी सुनाई होती है। जैसे मैंने कहा तुझे खा जाऊंगा रोजे में, इतना गुस्सा आता है। किसी आलिम साहब की किताब में पढ़ा था, कोई हवाला या कोई रिवायत नहीं, तो ये शायद जद्दी पुश्ती सुन सुनकर दिमाग में हो सकता है बैठ गया हो। तो यूं अगर ये हम बोलते रहेंगे रोजे में गुस्सा आता है, रोजे में गुस्सा आता है, तो जिसको नहीं आता है उसको हाँ यार रोजे में तो गुस्सा आता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये नफ्सियाती तौर पर भी अगर आप किसी को कहें ना तो गुस्से वाला बहुत है यार, जलाली तो उसको वो गुस्सा आएगा, बोलेगा वाकई लोगों ने नोट किया कि मैं जलाली हूँ, मुझे गुस्सा आता है, तो ये उसको गुस्सा आता रहेगा। या अपना बात लोग कहेंगे यार मेरा गुस्सा खराब है, मेरे से मगजमारी नहीं, तो क्या इसके दिमाग में बैठ गया, ये रफ टॉकिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा, और इसका जहन बन गया कि मेरा गुस्सा खराब है। इसके बजाय ये कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठंडा हूँ,
मुझे कहा इतना गुस्सा आता है यार, मैं क्यों किसी पर जुल्म करूंगा यार, गुस्से में आकर कैसे लड़ाई करूंगा। लड़ाई करने में ज़रा जुल्म से बचना मुश्किल है, या शोर मचाना, जुल्म से बचना बहुत मुश्किल है। किसी को डांटा, झाड़ा, या फिर माज़अल्लाह गालियाँ निकल जाती हैं मुँह से, ये गुनाह दर गुनाह। तो इसलिए रोज़ा तो हमें राहतें देता है, रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। रोज़ादारों के लिए तो दरिया की मछलियाँ दुआएं करती हैं मग़फ़िरत की, उस पर तो इतनी रहमतें उतरती हैं। तो ये गुस्से में क्यों मतलब पागल हो जाएगा, लोगों को मार पीट और अड़ाउड़ी करके, फायरिंग करके जेल के सरियों में जा पहुँचेगा, तो पुलिस वालों को भी मारेगा। मैं रोज़े से हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा तुमको। तो अल्लाह बेहतर जाने बोलते हैं लोग, और ये इतना बोलते, मैंने कहा कि ये बस जो दिमाग में पत्थर की लकीर हो गया है कि ये लोग बोलते हैं गुस्सा। इस जब से यूँ कह सकता हूँ मैं, शायद कि मैंने होश संभाला तब से सुना हुआ है कि रोज़े में गुस्सा बहुत आता है। तो कम से कम आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे, हाज़रीन नाज़रीन, ज़हन से निकाल दो मेरा मशवरा है कि रोज़े में बहुत गुस्सा आता है, मतलब गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुस्सा तो गुनाहों में बाज़ वक़्त क्या अक्सर धकेल देता है आदमी को, बर्दाश्त नहीं होता। अब जैसा गुस्सा और जैसी मिजाज के खिलाफ बात, अच्छा ये भी मशहूर है कि बूढ़ों को गुस्सा ज्यादा आता है, ये मशहूर बहुत है, आता होगा, लेकिन मैं भी बूढ़ा हूं, तो मैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुझे गुस्सा ऐसा है कि मैंने मारधाड़ करके या शोर शराबा कर दिया। अल्लाह बेहतर जाने बोलते लोग। तो ये भी ज़हन से निकालते कि मैं बूढ़ा हूं तो मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन मेरे में ज्यादा है, बढ़ गया है, मैं बूढ़ा हूँ इसलिए। तो फिर वो बुढ़े भाई जो है, बुढ़े मियाँ जो है ना, वे झगड़े करते फिरेंगे, अगर वाले तंग आ जाएंगे। तो आप ये नहीं मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, फुला भी तो बूढ़ा, ये कहाँ लड़ता है किसी से, ये कहाँ गुस्से में आता है, वो हमारी अड़ावड़ी करता है, हम उसकी मिसाल लें। अब कोई बूढ़ा खर दिमाग है और लड़ता है, हम उसकी मिसाल गाय को लेके बूढ़ों आते, जवान कैसे खर दिमाग है यार। अब जेल के जाकर सरिये के पीछे देखोगे तो बुढ़े थोड़ी मिलेंगे आपको, इक्का दुक्का बूढ़ा मिलेगा, तकरीबन जवान मिलेंगे कि इसको कत्ल कर दिया, इसको मार दिया, इसका मुंह तोड़ दिया, उसको मतलब हाथ पैर तोड़ दिया। तो ये खर दिमाग जितने होते ये जवान होते हैं, बुढ़े नहीं होते। ये खामखा हमारी बिरादरी को लोगों ने बदनाम कर रखा है। तो बूढ़े तो मेरी खास बिरादरी है, कल अगर जिंदा बच गया तो आपकी भी बिरादरी बूढ़ी ही होगी। ये नहीं समझो कि आप सदाबहार और जवान रहेंगे। जो ज्यादा जिया तो ये बुढ़ापे का मजा भी चखेगा मौत से पहले, और इसका भी एक ऐसा मजा, और ये कहूँगा तल्ख मजा है वाकई यार। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है दुनिया की, अभी तक कोई दवाई ईजाद नहीं हुई कि जिसमें बुढ़ापे का इलाज हो जाए। हदीस में कि जो बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसका इलाज भी उतारा, इल्ला मौत और बुढ़ापा। बुढ़ापे और मौत का कोई इलाज अल्लाह ने नहीं उतारा। कभी भी आपने नहीं सुना होगा बूढ़ा को जवान हो जाए, जवान हो गया हो। ये होता है कि बाद बूढ़े ये सुने देखें कि उनके मतलब सफेद बाल के बाद वापस काले बाल शुरू हो जाते हैं, और मुझे भी ऐसा शक पड़ता है कि मेरे काले बाल शुरू हो रहे हैं। तो हाँ नहीं, शक पड़ रहा है कि अल्लाह बेहतर जाने कि पहले मेरी दाढ़ी ऐसा लगता है मुझे व्हाइट हो गई थी बिल्कुल, अब वो मिक्स हो गई है। अच्छा इसमें क्या खूबी है पता है, इस मिक्स में कि कुतुब मदीना की दाढ़ी इसी तरह थी, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के, इसमें भी सियाही थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सईद कुतुब मदीना की बैत करनी थी। अब ये किसी ने मुझे कहा कि तुमने देखा तो ही नहीं, तो तुम मतलब तस्वुर शेख कैसे करोगे। तो मेरे मुंह से निकला कि अगर पीर कामिल है तो ख्वाब में आकर भी तो मसला हल कर सकता है। तो अल्लाह का करम ऐसा होगा, उसी रात ख्वाब में ज़ियारत, अभी बैत नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ियारत हुई सईद कुतुब मदीना की। तो अब मुझे वही कि इतने साल उम्र है और उतने साल उम्र है, 100+ थी ना आपकी उम्र, तो 107 या कुछ ऐसा याद पड़ता है, लिखा हुआ किताब हम भूल गया हूँ मैं। एज काफ़ी ओवर एज आप थे। मैं सोच रहा था कि इनकी दाढ़ी मुबारक जो, इसमें तो काले काले बाल हैं, सफ़ेद तो है लेकिन काले बाल भी हैं। तो मैं कारी मुस्लिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, इन्हीं से लेटर सिफारिश का लिखवाया था बैत के लिए। तो मैंने एक किस्सा सुना कि मैंने आज तो इनकी ख्वाब में ज़ियारत की है, और इस तरह मैंने किसी ने कहा, और मैंने तो बोला हाँ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की जो दाढ़ी मुबारक है ना, वो हमारे पीर साहब, इनके भी पीर साहब थे सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुरीद थे बहार शरीयत वाले,
बोला तो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दाढ़ी जो है ना वो सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब दाढ़ी की जैसी दाढ़ी है, क्योंकि उनकी दाढ़ी में भी काले बाल थे, सफ़ेद तो थे, उनमें काले काले बाल भी थे, और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दाढ़ी में भी काले काले बाल है। तो ये कारी साहब ने मेरे बस वो दिल की जो बात थी वो मसला हल कर दिया मेरा। मुझे वसवसा था कि ये ख्वाब गलत तो नहीं है कि काले बाल कैसे आ गए इस उम्र में। तो यूँ मतलब माशाअल्लाह इसमें कारी साहब बड़े खुश अकीदा बुजुर्ग थे, बहुत खुश अकीदा बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत इनकी, और मैं बहुत सोबत पाई इनके, बैठता था इनके पास जाके तो ऐसी सी बातें करते थे बुजुर्गों की। अल्लाह इन पर रहमत का नुज़ुल फरमाए, गरी की रहमत फरमाए। तो यूँ मतलब मेरा मसला हल हुआ। तो अब मुझे लगता है कि मेरी दाढ़ी में भी काले बाल शुरू हो गए, खुदा बेहतर जाने, हो सकता है वहम भी हो। सर के बाल भी अक्सर मेरे काले ही हैं। काले बाल या सफ़ेद बाल अपनी जगह पर है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन चेहरा हमारा सफ़ेद कर दे, वो काला चेहरा तो कुफ़ार का होगा जिन पर अल्लाह के फिटकार। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से वाहिद पढ़ो नहर। वअम्मा अल्लज़ीना अब्यद्दत वजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो चेहरे के जो सफ़ेद होंगे, गोरे होंगे, तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे और हमेशा उसके अंदर रहेंगे। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत सारे चेहरे उस दिन खिले हुए होंगे और अपने रब की तरफ देखते होंगे। तो क़यामत की सियाही तो कालक से अल्लाह पाक बचाए और चेहरा हमारा सफ़ेद और रोशन हो क़यामत में। बाकी दुनिया में तो अब गोरी चमड़ी तो अंग्रेज़ की ज़्यादा होती है हम लोगों से। हम लोग तो वैसे गंदुमी के लड़के, तो गोरी चमड़ी ये नूरानियत की अलामत नहीं है, गोरी चमड़ी होना, ये ज़हन में रखिएगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी नूरानी शख्सियत आप कहाँ से लाएंगे? लेकिन वो नूर जो था वो इबादत का नूर। असल जो सफ़ेद या काला या गंदुमी ये मेन नहीं होती, असल नूरानियत वो चेहरे की होती, वो इबादत से होती है। जैसे जो तहज्जुद गुजार होता है उसका चेहरा नूरानी हमें मिलेगा। तो बहरहाल तो बाद लोग सफ़ेद चेहरे देखकर लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, सही बोलता हूँ, और उन लोगों के अकीदे भी ख़राब होते हैं। दुनिया देखी भाली है, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। तो इसलिए वो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अगर किसी का चेहरा वाकई रोशन नहीं भी है लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त है ना, सहाबाई किराम के बारे में, फिर अपने प्यारे आका के बारे में, नबियों वलियों के बारे में, वही अपने लिए पास है, समझे। बाकी मैंने कहा ना चमड़ा तो अंग्रेज़ का भी सफ़ेद होता है, और हमें नूरानियत की पहचान है भी नहीं। सच्ची बात ही है, हमें पहचान नहीं, अपने ऊपर एतमाद करके किसी के चक्कर में फंस नहीं जाना। अब मिसाल के तौर पर दावत इस्लामी आपको मिली, अब दावत इस्लामी में अल्लाह करेगा आपको कोई ख़राबी नहीं मिलेगी। अकीदा इनका दुरुस्त, ईमानियत के हवाले से ये मजबूत, अपने बुज़ुर्गों के मानने वाले, दावत इस्लामी वाले सहाबाए किराम में कोई मतलब वो किसी पर भी तनकीद नहीं। हर सहाबी, इनका नारा ही है ये, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। और ये लोगों की इस्लाह के लिए दावत इस्लामी ने ये नारे आम किए कि बच्चे बच्चे के जहन में बैठ जाए, कल कोई इनको बेकाना चाहे तो उसकी दिमाग में ये टेप हो कि भाई ये तो दावत इस्लामी तो यूँ बोलती है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो यूँ मतलब अपना बच्चों को भी सिखाने वाली चीज़ें। इस तरह ख़त्म नबूवत के ताल्लुक से भी बड़ा मतलब बाज़ लोग मसले करते हैं, तो इसमें भी हमारे यहाँ ये नारे सिखाए गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, है ना कि बच्चे बच्चे के जहन में बिठा दो, सबसे आखिरी नबी ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई माने, इसका इम्कान भी माने, पॉसिबिलिटी कि शायद आ जाए, तब भी काफिर हो जाएगा, इस्लाम से उसको कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। तो ये फाइनल है कि कोई नया नबी नहीं आएगा। ये नया की इसलिए मैंने वजाहत की आपसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे, तो ये नए नबी नहीं है, तो पहले से ही नबी हैं, पहले से नबी हैं, और बज़ाहिर इन्हें अभी वफ़ात भी पेश नहीं आई। और ये जब तशरीफ लाएंगे तो इंजील मुक़द्दस की तालीमात भी आम नहीं करेंगे, ये तो कुरान की तालीमात आम करेंगे, ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आम करेंगे, यूँ समझ लो। अपनी नबूवत के तहत वो तो नबूवत तो सारी नबूवतें जो थी ना, अब वो मतलब थी सब हक,
لیکن اب ان کے جو احکامات جو بھی اب اسلام نے اس کو رکھا، قرآن نے باقی، قرآن و حدیث میں باقی رکھا گیا، وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ وہ ان پر عمل نہیں ہوگا اگرچہ وہ درست ہے اپنی جگہ پر اپنے وقت کے ساتھ. تو یوں مطلب یہ کہ نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. حضرت ادریس علیہ السلام بھی حیات ہیں، خضر علیہ السلام حیات ہیں، الیاس علیہ السلام حیات ہیں. ان مانو کر یہ چاروں نبی حیات ہیں کہ ظاہری طور پر ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، باقی سارے نبی حیات ہیں. دعوت اسلامی والوں ہی کا عقیدہ نہیں ہے، تو تمام علماء امت کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی حیات ہیں. نہیں جو خوش عقیدہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حیات النبی. لیکن یہ چار حضرات جو ہیں تو ظاہری طور پر وفات نہیں آئی، باقی سب کو ظاہری طور پر وفات پیش آئی، اور ان کے فوراً مطلب ہے کہ ان کو پہلے کی طرح حیات جسمانی عطا کر دی گئی. تو ان کے وجود مسعود، ان کے مبارک جسم جو ہے وہ بھی قبروں میں سلامت ہے، وہ زمین ان کو نہیں کھا سکتی. زمین پر کھانا حرام کر دیا گیا ہے، ہاں زمین نہیں کھائے گی اس کو، انبیاء کرام کے جسموں کو، الحمدللہ. تو یہ سارے جو عقیدے بزرگوں نے بیان کیے، غوث پاک کے جو عقیدے ہیں، جو خواجہ غریب نواز کے عقیدے ہیں، یہ سارے عقیدے انہی کے برکتوں سے دعوت اسلامی والوں میں موجود ہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدے ہمیں سمجھائے کہ بزرگوں کے، تو ان سب بزرگوں کے عقیدے دعوت اسلامی والوں نے اپنائے ہوئے. تو اس لیے دعوت اسلامی میں اب آ گئے تو ابھی چمڑیاں چیک کرنے کے بجائے ان کا عقیدہ پتہ چل گیا نا، تو بس اسی پر آپ ڈن کرنا، کیونکہ وہ کسی کے چہرے کا نور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، وہ ہمارے پاس کہاں ہے. ہم تو اچانک کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، متاثر ہو کر بس اس کے گنگاتے ہیں، پھر اس کی کوئی بات مزاج کے خلاف آ گئی تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، خلاف ہو جاتے ہیں، اپنا ٹھکانہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غصے کے متعلق ہمیں کئی مدنی پھول دیے. امیر اہل سنت کا ایک بہترین رسالہ غصے کا علاج، اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے آپ طلب کیجئے. اس میں غصے کے متعلق بہت ساری معلومات ہے، غصے کی تعریف، غصے سے کون کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہے، کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں، غصے کا علاج بھی اس میں لکھا ہوا ہے، معاف کرنے کے فضائل بھی اس میں ہے، غصہ پینے کے فضائل بھی اس میں موجود ہے، اور روحانی علاج بھی الحمدللہ اس مختصر سے رسالے میں موجود ہے. 36 پیجز کا یہ رسالہ ہے، اور اس کے پرائس جو ہیں وہ 32 روپیز ہیں. تو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ضرور اسے حاصل کیجیے. سبحان اللہ. غصہ جس کو نہیں آتا بھلے وہ نہ لے، جس کو بھی غصہ آتا ہے وہ لے لے اس کو. ایسا تو کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جس کو غصہ نہ آتا ہو. غصہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. ہاں یہ غصے میں یہ بیچارہ کوئی بول نہیں سکتا، یہ رونا شروع کر دیتا ہے. ماں دودھ نہیں پلاتی، نہیں پلاتی، اب کر کے وہ بدن اس کا تننا شروع ہو جاتا ہے، پلاتی کہ نہیں پلاتی، بیچارہ بول نہیں سکتا. تو یہ رو کر احتجاج نوٹ کروا رہا ہے کہ میں غصے میں اٹھ جاؤں، دودھ پلا دو مجھے. تو یوں غصہ سب کو آتا ہے، تو یہ رسالہ یوں سب کے لیے. حضور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جیسے بچے کی آپ نے مثال دی، تو بچہ لفٹ نہ ملنے پر اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ بڑے بوڑھے جو ہے نا بعض، جن کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں غصہ یا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یہ بھی شاید وہ ہوتے ہیں کئی کہ جنہیں آج ان کے گھروں میں بھی یا ان کے آس پاس میں اتنی لفٹ نہیں مل رہی ہوتی. اب یہ مطلب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے مطلب کہ اتنا مطلب کہ کھلا پلا کر ہنسا بھسا کر سارا بڑا کیا، آج ہم بڈھے ہو گئے، یار یہ ہم کو گھر میں پوچھتے ہی نہیں ہے، نہ کوئی مطلب کوئی کچھ بھی نہیں، لفٹ بھی نہیں کراتے. کئی ایسے بیچارے ہمارے بڑے بزرگ ہیں انہیں گھروں میں بیچارے لفٹ. تو یہ جو نہ ملنا نا لفٹ، یہ جو احساس ہے یہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن، اس کو کہتے ہیں نا، فرسٹریشن پیدا کرواتا ہے، اور یہ گھٹن پیدا ہوتی ہے. پھر یہ گھٹن کی نکلتی ہے، یا تو گھر میں نہیں نکلتی کہ گھر میں ایسا ماحول ہی نہیں گھٹن نکلے، تو پھر کسی چوک پر نکلتی ہے. یہ چار ایک ہی جیسے جب جمع ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں نکلتی ہے، اور پھر وہ گھر میں پہنچتی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے گھر میں چوک پہ بیٹھ کر ہمارے گھروں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ جو محبتوں کا نہ ملنا، پیار کا نہ ملنا، یا اس طرح کا ان کے ساتھ ترکیب نہ ہونا، شاید ایسا لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایک احتجاج والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا حل کیا؟ اصل تعلیم بچتی ہے دو ہاتھ سے، سمجھے. بعض بوڑھے جو ہوتے ہیں یا بعض جوان بھی ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ان میں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان جوانوں کو بھی لوگ
दीवार से लगा देते हैं, घर के अफराद मिल गए, बाहर भी निकाल देते हैं घर से। इसी तरह बुजुर्ग भी अगर या कोई बूढ़ी जो है खातून, वो भी अगर इनमें गुस्सा चिड़चिड़ापन होगा, बात बात पे कुड़कुड़ करेंगे, टक टक करेंगे, तो फिर ये मसला हो जाएगा। तो हर बूढ़े के साथ ऐसा नहीं होता। बूढ़ों के लिए, बूढ़ियों के लिए जिनके माँ बाप बुढ़ापे में फौत होते हैं, इनको आपने रोता गमज़दा होते देखा होगा। यानी ऐसे बूढ़े जो वाकई यूँ बाजार काम के नहीं होते दुनियावी एतबार से, लेकिन इनके औलाद जो खुद बाल बच्चे वाले हैं, लेकिन अपनी इस बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप के लिए रोते धोते हैं, बहुत सदमा दिल पे लेते हैं। ये तो कई बार मैंने भी देखा है, नोट किया है। बाप 70 साल की उम्र में गया, अम्मी 80 साल की उम्र में गई, ये रोते हैं, गमज़दा होते हैं, इसाले सवाब करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इन माँ बापों ने, जिनका ये सब हो रहा है, अपनी औलाद को मोहब्बत देने में कामयाबी हासिल की और इनसे ये लड़ाइयाँ नहीं ठान ली। तो इसलिए बुजुर्गों को चाहिए, अगर ये औलाद की मोहब्बत चाहते हैं और घर में अपना मकाम चाहते हैं, कि घर वाले आपसे आकर मशवरा करें, वरना ये मशवरा नहीं करते, बल्कि आप बिन मांगा मशवरा दोगे तो अब आप चुप करो ना, आपको ना समझ पड़े, यूं करके वो टोक देंगे आपको, और आपका दिल जो है, जिगर है, ये सब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो इसलिए मतलब मैं आपसे मशवरा दूंगा कि अव्वल तो बोले कम, ये मुश्किल है, क्योंकि बूढ़े के तमाम आज़ा जो है ना, बॉडी पार्ट्स कमज़ोर हो जाते हैं। एक बॉडी पार्ट ऐसा है कि वो ताकतवर हो जाता है, और उसको हम कहते हैं ज़बान। ये ऐसी ताकतवर हो जाती है। अब बदन थोड़ा चलेगा, थक जाता है, और ये बोलता चला जाए बुजुर्ग, ये थकता नहीं है, बोले जाता है। सुनने वाला थक जाता है, सुनने वाला थक जाए, वो अलग बात है। अच्छा, अब अल्लाह की शान है, कहीं पढ़ा था मैंने कि इस जबान को 32 दांत होते हैं, तो ये 32 सिपाहियों के पहरे में रखा है। जबान तो अंदर होती है, नजर नहीं आ रही ना, पहरे में आ गई। होंठ ये इसका फाटक। तो जब ये बड़े मियाँ की घूमती है बुजुर्ग की, तो अब ये क्या जबान जो है ना, वो क्योंकि वो ताकतवर होती, फौरन इसने 32 सिपाहियों का पहरा तोड़ना है, फाटक खोलना है, स्टेट फायर करना, और जो इसके साथ में आ जाए हट जाओ, खैर नहीं है। तो ये होता है। तो अब अगर बुजुर्ग इस तरह जबान चलाते रहेंगे, फिर बिन मांगे मशवरे दागते रहेंगे, जिसका कोई तुक नहीं होगा, और टक टक करते रहेंगे कि नमक करीब ज्यादा डाल दिया, तो मीठा ज्यादा कर दिया, तो ये कर दिया, तो गला नहीं है, तो इस तरह की गोश्त नहीं गला, तुमको पकाना नहीं आता। तो अब जरा बिगड़ के कभी कहते होंगे अब्बा आप पका लो, मुझे तो नहीं आता, मैं देख देख के सीख लूं। तो यूं मतलब ये कि अगर बूढ़ा बोले नहीं ना, तो इसका इंतजार करेंगे कि अब्बा कब बोले, दादा जान कब बोले। बोले तो अच्छा बोले, मीठा मीठा बोले, समझे, चिड़चिड़ा वाला ना बोले, गर्मा गर्म ना बोले। तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे इसका असर। वो बोले तो पूरा ना बोले, अधूरा बोले। ये एक मुबालगा है कि आधी बात करे, आधी बात करे और चुप हो जाए। तो बच्चे जो है, घर के अफराद, ये इंतजार करेंगे अब्बा आगे देखो क्या बोलते हैं, आगे बोले तो सही कुछ, ये चुप हो जाए। हर एक को अपना इमेज बरकरार रखना हो ना, ये तो यानी कि सारे दाव पेच ना जाहिर कर दे, अधूरा बोले। तो इस पर आपका रोब रहेगा, लोगों पर इमेज बरकरार रहेगा, इंप्रेशन रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। ये दुनियावी एतबार से मैं बोल रहा हूँ, और दीनी एतबार से भी यही है कि अगर मसले बयान करते हैं आलिम साहब, खैर उनको तो जहाँ ज़रूरत है जितने वो तो बयान फरमाएंगे। मैं एक जनरल बात करता हूँ कि हम लोग जो बूढ़े जो होते हैं ना, बाकी इनकी ज़बान, अब मैं देखो मैं कमज़ोर हूँ, मेरा चलना, मेरा आकर बैठना उठना आप देख रहे होंगे जो मौजूद हैं, कभी स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। ये लोग तो ये देखते होंगे ये किस तरह बैठता है। मैं बोलता कितना हूँ, घंटों तक बोलता हूँ ना मदनी मुज़ाकरे में, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत दे रहा हूँ, लेकिन ज़बान साथ देती है। तो यूँ बूढ़ों की ज़बानें ताकतवर होती हैं, अब वो अच्छा बोले या बुरा बोले।
तो अगर घर में इमेज बनाना चाहे ना तो बस वो खामोश रहे, क़ुफ़्ल मदीना लगाए और बीच में इंटरफेयर न करें इनके। आप देखो ये आपके पीछे घूमेंगे, आपकी औलाद आपका इंतज़ार करेगी कि आप बोलें और आपकी मिन्नतें करेगी, आपकी खिदमत करेगी। तो इनको बोल बोल के बेजार ना करें। ये आप सिर्फ मर्दों से बात कर रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग या जो बुढ़िया जो होती हैं, हाँ ये यूँ मैं नहीं बोल सकता रहा, मुंह पे मुस्कुराहट रखें। हाँ यूँ बूढ़े और बुढ़िया जो है मुंह पे मुस्कुराहट की आदत डालें, तकल्लुफ के साथ। मसला आपका देखो हल ना हो, आप मेरे को बोलो मुस्कुराहट कहाँ से लाया हजरत? नुस्खे गलत बैठे मदनी चैनल पर बैठकर क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते। मेरे घर का तो माहौल बदलता ही नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ तो बोलते तंज करते हो, देखो अच्छी बात बोलता हूँ तो बोलते आप मतलब आप चुप रहो। तो आप फिर जो मैंने बोला है ना, आप उससे हटकर आपने कुछ न कुछ जरूर धंधा किया है जिसकी वजह से औलाद ने आपकी खबर ली है। बस ना मेरा अगर नुस्खा 100% नुस्खा मेरा अपनाएंगे, अल्लाह करेगा औलाद आपके कदमों में है। बस सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उठे हैं तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, चाय टाइम पर मिली नहीं है, पानी मांगो तो मतलब सही टाइम पर मिलता नहीं है। आप बोलते हो मुस्कुराहट रखा, इतने सारे मतलब दिल का दर्द का गोदाम बना हुआ है। अब आप बोलेगा मुस्कुराहट रखे, तो ये दर्द के गोदाम में मुस्कुराहट निकले किधर से? असल यही है कि पानी टाइम पर नहीं मिलता, अपने हाथ से काम करे, पानी उठा ले, जो जो इसकी ताकत के अंदर वो कर ले, तो इंशाल्लाह इससे आपका इज्जत बहाल रहेगी। मेरे काम करने वाले मेरे साथ इस तरह भाई होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरे पहले तो ये ज़्यादा आदत थी मेरी कि मैं यानी कि जैसे लिखने करने का भी काम करता हूँ, कागज़ चाहिए कोई लेना देना, तो मैं बाहर उठ कर दे आता था दूसरे कमरे में अपने साथी को, इस भाई को बुलाता कम था, मैं मंगवाना होता तो जाके ले आता था। ये अब भी करता हूँ, अब सुस्त पड़ गया हूँ। बाद वो उठना बैठना ये मेरे लिए दुश्वार होता है। अभी पिछले दिनों, अभी ये रमज़ान की पहली तारीख को, शायद पहले रोज़े को, अब मैं फजर के बाद, वैसे तो ऐसी टाइट पोजीशन होती है आजकल तो खास कर, अब मुझे मेरे काम तो करने ही होते हैं। मैं छुट्टी करना पसंद नहीं करता मेरे काम की, कि फिर दूसरे दिन डबल करना पड़ेगा। तो मेरे को जैसे पैगाम की रिकॉर्डिंग ये करनी होती है, ताज़ियती पैगामात, इयादत के पैगामात, बच्चों के नाम रखने और ये पैगामात की रिकॉर्डिंग। अब चाहे नींद में हूँ चाहे कुछ भी, अभी यानी कि रमज़ान शरीफ में भी कोई पिछली बार भी एक आध नागा हुआ होगा मेरा, मैं हत्ता इम्कान मेरी कोशिश होती है कि मैं कर लूँ ये काम। अब मैं मतलब था आजमाइश में, अब मेरे मतलब पास जो भी था वो शायद इस तरह भाई वो सोए हुए थे। अब मैं ये आदत नहीं है कि बिला ज़रूरत बाज़ काम ऐसे होते कि मैं नहीं कर पाता, तो उसलिए वो बोलना पड़ता है। लेकिन ऐसे मौके पर वरना अब मैं शायद वो 10 बार उठाऊंगा, ये अरे यार वो क्या है, अच्छा वो उधर गया, उसको ढूंढा, इस तरह करके मैंने अपना काम किया। मैं ये बात पर बात निकली कि अगर मैं जगाता रहूँगा, मेरे साथ रहने के लोग हिर्स करते हैं साईं भाई कि हम आपके करीब आए, साथ रहे, खिदमत करें वगैरह। तो मैंने जिस दिन खिदमत लेनी शुरू की, भाग जाएंगे। नींद से उठा कर बोला ना मेरे को पानी भर के दो, पानी क्यों नहीं रखा, गिलास का है मेरा प्याला, वो मेरा प्याला का है, यार छोड़ो यार, तुम इतनी जिद करते तो मेरे साथ रहना, पानी तो पिलाने के काबिल नहीं हो तुम, आगे तुमसे क्या उम्मीद है। अब मैं ये बोला बोली करना शुरू करूंगा, ये मैं बोलूं कि चले जाओ से पहले ये अपना रास्ता निकाल लेगा भागने के लिए। तो बहरहाल ये कि अपना मिजाज होना चाहिए कि अपनी जात से किसी को कम से कम बिगैर मजबूरी के कोई जहमत ना दी जाए। तो अब ये कि जब साथ रहते हैं तो पता होता है, तो वो जहमत इनके लिए वो नहीं होती कि मतलब इसको नागवार गुजरे, हक़ुल अब्द तलफ हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी एहतियात करे तो अच्छा है। अपनी चीज़ खुद उठा ली, लेकिन मुझे उठाने में जैसा उठना बैठना देख रहे ना, लेकिन करना पड़ता है उठ के भी, कि बाद कोई साथ नहीं होता और एक बच्चा मेरा सोया होता है मेरे पास, तो उसने तो करना नहीं है काम।
ये माशाल्लाह आपने घर गृहस्थी और इसके ताल्लुक से तो चलें बयान कर दिया। अब वो ये अब मैं समझता हूँ कि शायद ये हज़ारों नहीं शायद लाखों घरों के लिए एक मुफीद तरीन ये सेशन हमारा चल रहा होगा। अल्लाह करेगा हमें अमल की तौफीक अता हो जाए और हम इसको सीरियस लें। लेकिन ज़रा भी इसके एक और पहलू की तरफ मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो दिला दें कि इससे घर का माहौल या अपनी जो मकाम या अपना जो है तो क्या इसके कोई तिब्बी फ़वाइद भी हैं कि ख़ुद उठना, ख़ुद करना, ख़ुद ये करना, अगर ना करे तो क्या इसके तिब्बी यानी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे भी या फिज़िकली पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आप समझते हैं कोई इसके फ़ायदे नुकसान है, अगर आप बयान कर पाएँ तो? हाँ, मतलब ये कि अगर यूँ बैठा ही रहेगा आर्डर कर, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो पहले तो रिमोट कंट्रोलर नहीं होते थे, अब तो बत्ती भी ऑन हो जाती है रिमोट कंट्रोलर से, पंखा भी ऑन हो जाता है, AC भी, TV भी, मदनी चैनल सब इससे हो रहे हैं, काम आसान हो गया। लेकिन पहले बटन के लिए उठना पड़ता था ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। हमने तो ये रिमोट कंट्रोलर के नाम भी नहीं सुने थे, ये सब करना पड़ता था, उठना बैठना, ये एक मूवमेंट, ये भी एक वर्जिश है, एक्सरसाइज है। फिर उंगली से बटन यूँ करना, उंगली की एक्सरसाइज है, समझिए। तो इस तरह मतलब ये कि चलने फिरने से बदन में फुर्ती रहेगी, इसके फवाइद हैं। वर्जिश बहुत अच्छी चीज़ है, अपने हाथ से काम करना सुन्नत है, तो आपने सुना ही होगा, समझे। और वाकई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बहुत सारे काम करते थे जो आज हम नहीं करते, हम शर्माते हैं, तो करने चाहिए। तो ये फवाइद है। फिर ये कि अगर ये जिस तरह मैंने जो नुस्खे आपको दिए ना, तो इन नुस्खों के मुताबिक अगर अमल आप करेंगे ना, आप टेंशन आपका कम होगा, टेंशन कम होगा, तो इससे कई बीमारियों से आपकी हिफाजत होगी। या ये बीमारियां तो आती हैं बुढ़ापे के साथ, टक टुक लगी रहती है, लेकिन उनका अटैक कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी। वरना टेंशन का मरीज जो है ना, ये खतरे में चल रहा होता है, टेंशन की वजह से बाज़ों का हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल भी हो जाता है। टेंशन बहुत खतरनाक है। अब जैसा टेंशन, तो यूं मतलब बुजुर्गों को टेंशन बेचारों को बहुत रहता है, खामा खा के टेंशन पालते हैं, खुद नहीं सुधरते। ये चाहते हैं कि मेरी औलाद, मेरे दोते पोते सुधर जाए, ये नहीं होएगा। आप खुद सुधर जाए, ये सुधरने के लिए तैयार है। आप नहीं सुधरेंगे तो आपकी डांट सुनने के लिए, आपकी जली कटी सुनने के लिए ये तैयार नहीं है। 100 सुनार की 1 लोहार की। आप खुद इंशाल्लाह कंट्रोल, बड़ी बूढ़ियां भी खुद को कंट्रोल करें, बड़े बूढ़े भी कंट्रोल करें, इंशाल्लाह राज करेंगे अपने खानदान पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या आपने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में कोई कलाम लिखा है? अगर लिखा है तो चंद शेर सुना दीजिए। अल्लाह अल्लाह, आपको पता चला है, लगता है लिखा है, फिर सवाल कर रहे हैं क्या लिखा है। जी हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस आदत पाई है। अभी रमज़ान शरीफ से चंद रोज़ पहले थोड़ा थोड़ा, तो मेरी बस टाइम काम इतना होता है, तो कभी 2 शेर लिख लिया, कभी 1 शेर लिख लिया, कभी 3 शेर लिख लिए। तो ये मैंने जूं तू करके अपना काम कर लिया और ये मनक़बत पूरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये नातख़्वां बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं हाजी महमूद अत्तारी। आप पर अल्लाह की रहमत हो हज़रत फ़ातिमा, आप पर अल्लाह की रहमत हो हज़रत फ़ातिमा, आपके सदके में हो पर भी रहमत फ़ातिमा, इसमें अता फरमाए बरकत
مجھ کو استقامت فاطمہ شہید کربلا کی پیاری پیاری والدہ شہید کربلا کی پیاری والدہ شہید کربلا کی پیاری پیاری والدہ کر دعا آؤ مدینے میں شہادت فاطمہ کر دعا آؤ مدینے میں شہادت فاطمہ کاش بن جائے بقیے پاک میں میرا مزار کاش بن جائے بقیے پاک میں میرا مزار قرب میں اس کے جہاں ہے تیری تربت فاطمہ قرب میں اس کے جہاں ہے تیری تربت فاطمہ نار دوزخ مجھ پہ ہو جائے حرام ایسی دعا نار دوزخ مجھ پہ ہو جائے حرام ایسی دعا کر کے حق سے مجھ کو دلوا باغ جنت فاطمہ کر کے حق سے مجھ کو دلوا باغ جنت فاطمہ آئے بوڑھا ہو گیا پر میں سدھر پایا نہیں آئے بوڑھا ہو گیا پر میں سدھر پایا نہیں بڑھ گئی ہے اور بھی اسی کی شدت فاطمہ بڑھ گئی ہے اور بھی اسی کی شدت فاطمہ ساغریوں باطنی بیماریاں تار کی ساغریوں باطنی بیماریاں تار کی دور ہو دل والو اپنے رب سے صحت فاطمہ دور ہو دل والو اپنے رب سے صحت فاطمہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ آپ کے صدقے میں ہو پر بھی رحمت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 رمضان المبارک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ اس موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنی ساس صاحبہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیاری پیاری امی جان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی امی جان سے فرمایا بی بی فاطمہ آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دیں گی۔ الحمدللہ آج 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور
शहजादी कौनैन बिनते रसूलुल्लाह यानी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शब उर्स है। तो इससे हमारी साईं बहनों को भी दर्स लेना चाहिए कि सास की खिदमत करनी चाहिए और इसमें दिल बड़ा रखना चाहिए और तंग दिली से ये काम ना किया जाए, बल्कि ये इसको बीबी फातिमा का तरीक़े कार समझकर इसको अंजाम देंगी तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको मिलेगा। दुख्तरे मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़ौजे मुर्तज़ा सैयदा फातिमा मुतलक़न बाग़िया सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ मोतकिफ़ीन भी जमा हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना मखसूस मोतकिफ़ीन है और आज हमने हज़रत खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नियाज की है। अगर आपने भी ना की हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कुछ पेश किया गया, जो कुछ पढ़ा गया अब तक टूटी फूटे जो अमाल मेरा नामा अमाल में है, इन पर जो मुझे अपनी अपनी नेकियों के इसाले सवाब की नीयत कर लें, इन सब पर अपने करम के शान शान अजर अता फरमा। ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये सारा सवाब तमाम अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन और सारी उम्मत को इसका सवाब इनायत फरमा। और खुसूसन बिलखुसूस सैयदा तय्यबा आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन सैयदा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इसका सवाब इनायत फरमा। हज़रत बीबी फातिमा का सदका हमारी झोलियों में डाल दे, हमारी बहू बेटियां हया की चादर अपना लें और सास बहू के झगड़े ख़त्म हो और बहुएं जो है अपनी सास की खुश दिली के साथ खिदमत अंजाम दें और घर का माहौल साफ़ सुथरा रहे और सास को भी तौफीक मिले कि अपनी बहू से ऐसा सलूक करे कि जैसा अपनी बेटी से करती है। तो इस तरह तेरे करम से हमारे घर जो हैं ये लड़ाई झगड़ों से पाक होंगे, अमन के गहवारे बन जाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी दावत इस्लामी का एक खासा है कि हमारे यहाँ सहाबा अहले बैत सबका मान इज्जत सबको अपनी अपनी जगह पर एहतराम दिया जाता है। यानी सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हमारे ख़ानदान से हमको तो समझो विरसे में मिली है। मेरी एक बड़ी बहन का नाम खदीजा नाम था। खदीजा ये बीबी फातिमा की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन। अच्छा, एक बड़ी बहन अलमारूफ फुईमा इसको बोलते थे हमारे बाउल में, उनका नाम था फातिमा जो भी चंद साल पहले वफात पाई। खदीजा को इससे पहले वफात हुई। इसके बाद की बहन जो मुझसे ये भी बड़ी थी जो मतलब उसका नाम था ज़हरा, उनके भी अभी वफात हो गई। तो यानी यूँ मैं हमारे ख़ानदान की रग़बत अहले बैत की तरफ और खातून जन्नत बीबी फातिमा की तरफ ये आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो समझो ये चीज़ें विरसे में मिली हैं अल्लाह की रहमत से, अहले बैत की मोहब्बत। और आप भी अहले बैत से मोहब्बत कीजिए। नहीं, हमारा मतलब तो माहौल इसी तरह। ये मुफ्ती साहब की एक बेटी का नाम कनीज़ फातिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इनकी गुलामी में ही हमारा मान है, इनकी गुलामी ही हमें आकाई दिलाई है। देखा जाए तो जो इनकी गुलामी में जितना पक्का है इतना वो कौम का पक्का रहनुमा बनेगा। इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, अजमत मिलेगी उसको। जो इनकी इज्जत में कमी करेगा तो उसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। अल्लाह करीम हमें बस अहले बैत और सहाबा किराम की मोहब्बत में जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत में हम दुनिया से रुखसत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमजान जिक्र और तौबा का महीना है। मैं नियत
चाहती हूँ कि मैं पूरे रोजे रखूंगी। आप मुझे इस्तिकामत की दुआ फरमा दे। सुल्तान विलायत वासे पाक वलियों पे हुकूमत वासे पाक शहबाज खिताबत वासे पाक। पापा जान मदीने जाना है। हम सबके लिए दुआ करना मदीने जाएं। आमीन। अकायद व अमाल की इस्लाह के लिए माह रमज़ान कमाल के मुताबिक गुजारिए। तक़वा पाने के लिए माह रमज़ान कमाल के मुताबिक गुजारिए। दुख्तरे मुस्तफा सय्यदा फातिमा सालिहा फारिसा सय्यदा फातिमा हो करम हो अता सय्यदा फातिमा। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में अल्लाह पाक के जिक्र करने वाले को बख्श दिया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दी, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इनको माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे। बार बार मिठा मिठा, शहद से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। शब्बीर अहमद सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत कब हुई, इनकी सीरत के कुछ अहवाल बयान फरमा दें। हज़रत सैयदा खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत बासआदत ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा की विलादत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुबारक घर पर हुई। इसीलिए उसे मौलिद फातिमा कहा जाता था, उस मकान आली शान को। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा रोज़ा और इबादतों का बहुत शौक रखती थी। शर्म व हया और पर्दा करना आपके आला औसाफ यानी उम्दा खूबियों में से था। कभी किसी गैर महरम की नज़र आप पर ना पड़ी, बल्कि आपकी ये तमन्ना थी कि विसाल यानी वफात के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। चुनांचे बरोज़ महशर लोगों को निगाहें झुकाने का हुक्म होगा ताकि आप रज़ियल्लाहु अन्हा पुल सिरात से गुजर जाएं। इसमें सवाने करबला में लिखा है कि 70,000 हूरों के झुरमट में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पुल सिरात पार करेंगी और ऐलान होगा, ए अहले महशर अपनी निगाहें नीचे कर लो कि दुख्तरे मुस्तफ़ा बीबी फातिमा पुल सिरात से गुजर रही हैं। क्या शान होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मोहब्बत और शफ़क़त बीबी फातिमा के साथ, यानी इतनी शफ़क़त फरमाते कि इनको बीबी फातिमा को अपनी जगह पर बिठाते थे, अपनी निशस्त यानी अपनी सीट पर बिठाते। नी सफ़र से वापसी पर भी सबसे पहले बीबी फातिमा के यहाँ तशरीफ ले जाते। एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो चीज़ इससे बुरी लगे वो मुझे बुरी लगती है और जो चीज़ इससे ईज़ा दे वो मुझे ईज़ा यानी तकलीफ देती है। विसाल पुरमलाल यानी वफ़ात हसरत आयात। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने यानी वफ़ात शरीफ ज़ाहिरी तौर पर फरमाने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और फिराक यानी जुदाई में बेचैन रहती। आखिरकार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद 3 रमज़ान मुबारक को बीबी फातिमा इस जहां से रुखसत हो गई, वफ़ात पाली। सही कौल के मुताबिक मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बीबी फातिमा की नमाज जनाजा पढ़ाई और मुख्तार कौल यह कि आप
का मज़ार पुरनवार जन्नतुल बकी में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर रहमत हो, इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल है कि उमूमन शादियों में ये देखा गया है कि दूल्हा ख़वातीन के पोर्शन में जाकर बैठ जाता है, फिर इस पर दूल्हा के माँ बाप का ये कहना होता है कि बच्चों की खुशी है, वो नहीं मानते। बाज़ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो रोक सकते हैं मगर नहीं रोकते, और ये कहकर दिल को मना लेते हैं कि बच्चों की जो मर्ज़ी। या सय्यदी, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? मर्जी मेरी तेरी नहीं चलेगी भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर हम सबकी मर्जियां कुर्बान। हम मुसलमान हैं, फिर हम गुलाम हम किस तरह के गुलाम हैं? तो ये दूल्हा अंदर जाता है, बास कौमों में, हर कौम में नहीं है, अंदर जाता है। और ये भी सुना है कि फिर औरतें इसको छेड़ती भी दूल्हा को, इधर से खींचती है उधर से खींचती है, ये सुन रखा है मैंने। तो ये तो बहुत इन्हें समझो हराम कामों का मजमुआ ये होता होगा वहाँ। इन हमारी बिरादरी में, मेमन बिरादरी में कभी नहीं सुना। एक जगह मैं कहीं गया था शादी में, या शादी से पहले कोई गुफ्तगू हुई, तो वहाँ पता चला कि हमारे यहाँ ये होता है इस तरह। खुद कभी देखा नहीं है इस तरह मैंने, तो यूँ पता चला था मुझे। ये बहुत साल हो गए इसको। तो बहरहाल ये कि ये गुनाह का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परले दर्जे की बेहयाई है। अरे मेरे को तो ये बात भी पसंद नहीं है कि रुखसती में जवान लड़कियां छोड़ने जाती हैं, कि जज्बात का आलम क्या होता होगा जब ये दुल्हन को छोड़ने जाती होंगी। तो ये बस अब ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सब समझ सकते हैं। और ये हर खानदान में तकरीबन आजकल हो रहा होगा, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। ये ऐसी नामुराद मतलब रस्म है जिसकी हद नहीं। अगर छोड़ना ही है ठीक है, पहुंचाना, बड़ी बूढ़ियां पहुंचा के आ जाए। ये जवान लड़कियां, कंवारी लड़कियां क्यों जाती हैं? व्हाट इज दिस? किसको खुश करने जाती हैं? क्या इनको ये खुशफहमी है कि अल्लाह और रसूल खुश हो जाएंगे हमारी इस हरकत से? ये इसका कार खैर जिसको ये समझती है, कार खैर थोड़ी है। हाँ, शैतान खुश होगा इससे, जो इनको वसवसे डालने में शैतान का मजा आ जाएगा ना। इतने गंदे वसवसे उसको डालते होंगे जो ये जाती हैं। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये मेरी बात वो है जो सबकी समझ में आती होगी, लेकिन बस वही कि बच्चों की खुशी है, खुशी में यार सब चलता है। अरे भाई कुछ नहीं चलता, खुशी हो या गमी, सिर्फ अल्लाह और रसूल का हुक्म चलता है और कुछ नहीं चलता। हम अपनी चलाने जाते हैं तो इसमें कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये हमारे पाँव जहन्नम की तरफ चल पड़े और कुछ का कुछ हो जाए। अल्लाह पाक से हम उसकी रहमत के तलबगार हैं। इतनी खराबियां शादियों में हो गई कि किस किस खराबी का बंदा तस्करा करे। और फिर बोलते हैं घर यूँ हो गया तो लड़ाइयाँ होती हैं, तो बरकत नहीं है, तो क्या तो बरकत कहाँ से लाओगे यार? इतनी हरकतें करते हो तो बरकतें कहाँ से आएंगी? अल्लाह को और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने का कोई रास्ता तो छोड़ते नहीं हो जब शादियाँ करते हो। अब बरकतों का शिकवा करते हो कि बरकतें नहीं है, मुसीबतें हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलाक मांग रही है, तलाक की धमकी दे रहा है। अरे ये घर घर की कहानी है। आप शादी सुन्नत के मुताबिक करता कौन है यार? आजकल कोई करोड़ों में करता हुआ, लाखों में भी नहीं। कोई करता होगा मतलब कोई, या ख्वाब में करता हुआ सुन्नत के मुताबिक। जाहिरी तौर पर तो माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ही बिगड़ा हुआ है। काश कोई ऐसा मतलब यानी कि ऐसी मदीने की हवा का झोंका हम पर आ जाए कि हम सुधर जाए। अब सुधरे नहीं यार, वाकई इतना बिगाड़ है कि हर सांस पर बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, कदम पर ही सांस पर बिगाड़ बिगाड़ बिगाड़, इतना बिगाड़ है कि खुदा की पनाह। चंद ममालिक में मेरा जाना हुआ है और वहाँ जो बातें होती हैं और उनके मुतालिक जो वहाँ का कल्चर सामने आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अब मतलब जैसे सैलाब जो है ना वो अपनी पूरी तबाही के साथ अंदर दाखिल हुआ है। यहाँ चंद चीज़ों से अगर लड़का ख़ुद को रोकने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि शायद उसको कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर कितना दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे भी सवाल हुआ
تو یہ ہمارے اب مطلب ہماری میمن کمیونٹی اب کسی سے پیچھے نہیں ہے. یہ مطلب میمن کمیونٹی میں پتہ نہیں کتنا آگے نکل گیا ہے. تو شاید یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ شاید اس ریس میں شاید میمن کمیونٹی کئی میدانوں میں آگے نکل گئی ہوگی. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. میمن کی میں نے مثال دی کہ وہ حرکت نہیں سنی میں نے کہ میں چونکہ میں میمن ہوں, شادی میں نے بھی کی, تو ہمارے ہاں تو کوئی اس کا تصور بھی نہیں تھا. روکتی ہیں یہ جوان لڑکیاں جو ہے نا, یہ مطلب کہ لڑکا اگر خود کو کہہ دے کہ میں عورتوں کے حصے میں نہیں جاؤں گا, اب اس کو کوئی ڈنڈا مار کے لے جائے گا, جا ورنہ مطلب تیری رخصتی نہیں کریں گے. خود لڑکے کے اندر بھی اگر یہ غیرت, یہ حیا اور یہ چیزیں اگر لڑکے کے اندر پیدا ہو جائے نا, تو اس کے اوپر کتنا پریشر آ جائے گا. دولہا ہے اس کی چلے گی. ہاں تو وہ مطلب کہ ہاں تو یہ رکے. اس کے علاوہ جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں جو جوان لڑکیاں جمع ہوتی ہیں, کمرے کے باہر جمع ہوتی ہیں, اگر یہ خود کہہ دے کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, تو مطلب اس کی عادت تو چلے گی شاید, جتنا یہ لڑکا چلا لے آج جتنی چلانی ہے. لیکن خود اس کو بھی اس طرح کی جو چیزیں جو اس کو بھی دماغ کے اندر جو شیطان نے کئی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں, تو اگر روکنا چاہیں, منع کرنا چاہیں, اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیں, تو ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں آپ کو کئی ایسے نوجوان ملیں گے جنہوں نے اس طرح کی کئی رسومات ان کے خاندانوں میں رہی ہیں, ان کے کزنس میں رہی ہیں, مگر جب دعوت اسلامی کے مبلغ بنے, ان کی شادیاں ہوئیں, تو الحمدللہ انہوں نے ان چیزوں کو اس خاندان میں رہتے ہوئے روکا ہے. ایسے آپ کو ایسا نہیں کہ آپ یہ مایوس نہ ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ تھوڑی کوشش کریں, خاندان میں بات چیت کریں. بھئی یہی اس کے سگے بھائی کی شادی میں جو ہونا تو ہو گیا, مگر دعوت اسلامی کا مبلغ بن کے جب اس نے ماشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی, یہی فیملی اس کے ساتھ کوپریٹ کرنے لگ گئی, ماننے لگ گئی. تو کچھ اگر میرے اسلامی بھائی بھی اس معاملے میں سیریس ہو جائیں اور کچھ کوشش کریں, تو اللہ نے چاہا تو کئی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ کئی ایسے ہوتے ہیں میوزیکل پروگرام یہ وہ نہیں ہونے دیتے, اور کامیابی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. اب ہمارے سامنے مثال ہے نا دعوت اسلامی کا ماحول. میں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا ہوں, میرے ساتھ لاکھوں اسلامی دینی ماحول میں آئے ہیں. اس سے پہلے کی صورتحال, خود ہمارے خاندانوں میں شادی کی صورتحال, دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہمارے اسلامی بھائیوں کی شادیوں کی صورتحال, خاندان بھی وہی ہے, والدین بھی وہی ہیں, بھائی بہن بھی وہی ہیں, پھوپھی خالہ بھی وہی ہیں, پورا خاندان وہی ہے. صرف ایک اسلامی بھائی کی سوچ بدل گئی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, خاندان اس کے پیچھے چلا ہے. اس لیے میں آپ اسلامی بھائیوں کو آپ کو درخواست کر رہا ہوں, جو آپ کی جس کی شادی ہے نا, آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ اسلامی بہنیں ان کی شادی, ان کی بہنوں کی شادیاں ہوئی کچھ اور انداز ہوئی, لیکن جب وہ دعوت اسلامی میں آتی ہے, مبلغہ بنتی ہے, الحمدللہ اس نے ذہن دیا اور خاندان اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ مددگار پیدا کرتا ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا اپنا ذہن بنائے تو اللہ پاک نے چاہا تو کئی گناہوں سے ہم بچ بھی سکتے ہیں اور اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں. بے شک. یہ کون ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ عرس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اور خوبصورت ناموں والی بچیاں المیر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, اور آج ان کی چھوٹی ہوسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت, سب سے پہلے میری طرف سے اور اس کے بعد ان تمام بچیوں کی طرف سے آپ کو رمضان شریف مبارک ہو. خیر مبارک. پیارے امیر اہل سنت, میرا نام ماہنور عبداللہ ہے. میں مدرسۃ المدینہ قتیزۃ الکبریٰ ملیک ہوکرہ پار کے درجے حفظ القرآن کی طالبہ ہوں. ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ کے مختلف کیمپسز کی مختلف بچیاں موجود ہیں, اور وہ یہاں آج آپ کے سوالوں کا جواب دینے آئی ہیں. کیا آپ کی اجازت ہے؟ میں سوال میں کروں گا انشاءاللہ, آپ اجازت دے دیجئے مجھے. ہوسٹ تو آپ ہیں نا, کہیے اجازت دی. لبیک. مجھے بھی ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عائشہ ہے. آپ مدرسۃ المدینہ کے کون سے کیمپس میں پڑھتی ہیں؟ میں مدرسۃ المدینہ آغرتاز میں پڑھتی ہوں. جی امیر اہل سنت, آج ہمارے ساتھ عائشہ موجود ہیں,
اور وہ مدرسۃ المدینہ قتیزۃ الکبریٰ کے کیمپس آگرہ تاج کی طالبہ ہیں. ماشاءاللہ. جی امیر اہل سنت سوال فرمائیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام بتائیے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ خدیجہ دال سے تیز خدیجہ نہیں ہے، خدیجہ. خدیجہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی امیر اہل سنت دوسرا سوال ارشاد فرمائیں. لبیک. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر. جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 2 القابات بتائیے. ام السادات خاتون الجنتی، خاتون جنت. چلو کچھ رستہ نکالتے ہیں. ام السادات اور خاتون جنت. جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. چلیے اور بھی پوچھو. اچھا، اعلان نبوت سے کتنے سال پہلے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت یعنی برتھ ہوئی؟ 5 سال پہلے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حفصہ جبران ہے. آپ مدرسۃ المدینہ کے کون سے کیمپس میں پڑھتی ہیں؟ 11 نیو کراچی. جی امیر اہل سنت آج ہمارے ساتھ حفصہ موجود ہیں اور وہ مدرسۃ المدینہ کے کیمپس 11G نیو کراچی کی طالبہ ہیں. ماشاءاللہ. سوال ارشاد فرمائیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ روزت سے آزادی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کے صدقے میں جہنم سے آزادی ملے گی انشاءاللہ. اللہ پاک سے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. حضرت بی بی فاطمہ کن کی ہم شکل تھیں؟ اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عائشہ ہے. آپ مدرسۃ المدینہ کے کون سے کیمپس میں پڑھتی ہیں؟ میں مدرسۃ المدینہ آگرہ تاج میں پڑھتی ہوں. جی امیر اہل سنت آج ہمارے ساتھ عائشہ موجود ہیں اور وہ مدرسۃ المدینہ کے کیمپس آگرہ تاج کی طالبہ ہیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کن عظیم صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوا؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال شریف رمضان مبارک کی کس تاریخ کو ہوا؟ 3 رمضان شریف. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیاری پیاری بچیوں نے پیارے پیارے جوابات عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. 4 یارانی نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. اور عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے حسن حسین بھی
जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौज़े नबी, जन्नती जन्नती, है मुआविया अभी, जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी। जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, नारे बड़े परफेक्ट याद किए हैं, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत, हम सब के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह आप सबको बामल आलिमाए दीन, मुफ्तिया इस्लाम और दावत इस्लामी की मुखलिसा मुबल्लिगा, मुखलिस मुबल्लिगा बनाए। माँ बाप की फरमाबरदारी करती रहे, माँ बाप को राजी रखेंगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। इंशाअल्लाहुल करीम। इनके सरपरस्त भी हमारे साथ अमीर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बीबी फातिमा का आज तो शबे उर्स है, तो क्या ये अच्छा होता कि बीबी फातिमा का इस सवाब की भी नियत कर लें, और कोई मदनी काफिला या कुछ दे दें, कुछ ना कुछ इनके नाम पर। इनके नाम पर से मुरादी इनके ईसा सवाब के लिए ये होता है। माशाअल्लाह। इन्होंने मदनी काफिले की वैसे नियत की थी कि इंशाअल्लाह अगर अमीर सुन्नत इरशाद फरमाएंगे तो हम सब मिलके 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे। अभी तो सबने कुफले मदीना लगाया हुआ है, वो भी टाइट जी, बोलते ही नहीं। भाई अपनी नियतों का इजहार करें जो अपनी नियतें की थी, तारीख भी अता फरमा दें। जी, रमजान शरीफ के फौरन बाद इंशाअल्लाह ये 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। रमजान शरीफ के फौरन बाद चांद रात से वो तारीख दे दो ना, कौन सा जुमा, पहला जुमा, दूसरा जुमा। हाँ इंशाल्लाह, ईद के बाद पहला जुमा इंशाल्लाह। हाँ, ये हुई ना बात। ये सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रही है, इतने हो जाए ना। जी, कौन कौन मुत्तफिक है इनसे ईद के बाद फौरन पहला जुमा? हाथ उठा दें। माशाअल्लाह। और जो पहला जुमा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे जुमे की नियत कर लें, वो भी हाथ उठा दें अगर जहन में नियत बनती है तो, वरना खाली खाली हाथ उठाएंगे और दिल में ये कि कौन जाता है, ये थोड़ी पीछा करेंगे मेरा, तो वो अल्लाह देख रहा फिर गुनाहगार होंगे अगर झूठी नियत का इजहार करेंगे तो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी इस नियत पर आपको इस्तिकामत दे। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाबों से मुतालिक कुछ सवालात आपसे करने हैं। अल्लाह अकबर। जागते हुए, क्या ख्वाब का असर इंसान की तबीयत पर भी होता है? जी हाँ, ख्वाब का असर इंसान की तबीयत पर बिल्कुल होता है। और ये तो देखी वाली चीज, आप अच्छा ख्वाब देख लें, ख्वाब में मदीना देखें आप, है कैसे आज तो मदीना नजर आया, और अगर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ख्वाब में देख लें तो फिर तो है ना, वो है ना कि ऐसी भी सहर आए कहता फिरूं एक एक से सरकार नजर आए, सरकार नजर आए। तो ये तो बिल्कुल रोकड़ी बात कर दी कि असर तो पड़ता है तबीयत पर। बुरा ख्वाब देख ले तो है मूड खराब होता है ना, फर्क पड़ता है। अपने किसी खास करीबी अजीज को ख्वाब में माज़अल्लाह कोई देख ले आग में जलता हुआ, है ना, कैसा टेंशन हो जाएगा इसको कि या अल्लाह ये क्या हो गया। और अगर खुशनुमा बाग में उस अजीज को टहलता हुआ देख ले, है तो पाँव इसका भी जमीन पर नहीं पड़ेगा कि मेरा बाप तो यूं बाग में टहल रहा था ख्वाब में। तो तबीयत तो फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। अच्छा, ये इरशाद फरमाए क्या दिन में देखे गए ख्वाब सच्चे होते? दिन को भी बात सच्चे होते हैं ख्वाब, बिल्कुल। ठीक है। क्या शुगर के मरीजों को डरावने यानी बुरे ख्वाब आते हैं? ऐसा मखसूस नहीं है शुगर के मरीजों को ही डरावने ख्वाब आए, मुख्तलिफ मरीज होते हैं तो इनको मरज की जैसी शिद्दत, तो वो क्या वो दिन में उसको टेंशन होता है ना, यार ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, तो बाद वो ख्वाब में भी इसके मतलब असरात वो देखता है। ख्वाब में तलाक देने से क्या तलाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर ख्वाब में मरहूमीन कुछ मांग रहे हो तो क्या करना चाहिए? इशारे सवाब कर देना चाहिए। अगर ऐसी जायज़ चीज़ मांगते हैं कि मुझे सवाब भेजो, या मतलब मुझे मिसाल के तो उसने कहा मुझे खाना दो, तो खाना तो वो जो मतलब फिजिकली चीज़ें हैं जो सॉलिड, वो तो हम दे नहीं सकते ना इनको, ना ये ले सकते हैं, तो इनको मतलब हम इशारे सवाब करते हैं इस खाने का कि मुझे बिरयानी भेज दो, मुझे बिरयानी दो।
कौरमा रोटी खानी है। तो ये कि औलाद का मतलब जिगर है, दिल है कि बाप को खुश कर दे, मांगा है तो इस साल से आप कर दे कौरमा रोटी। ये मशवरा है, वाजिब नहीं है कि नहीं करेगा तो गुनाहगार हो जाएगा। अब ये फरमाइए कि ख्वाब में खुद को मरा हुआ देखा तो क्या ये लोग बाजू का डर जाते हैं क्या? अब मरना तो है यार, ख्वाब में अभी देखा तो कल दिन जागते में भी मरना तो पड़ेगा। तो अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे। लेकिन ये हर वक्त ऐसा नहीं होता कि ख्वाब में मरना देखा तो अभी अगर वो सुबह मर जाएगा या परसों मर जाएगा, कल मर जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर ख्वाब देखने वाले का मामला ऐसा होता है कि अपनी अपनी कैफियत, नेक आदमी का ख्वाब कुछ होगा, बद का कुछ होगा, परहेजगार का कुछ होगा, है ना, दुनियादार का कुछ होगा। ख्वाब एक तरह का होगा लेकिन इसकी ताबीरात में फर्क पड़ जाएगा। ये टाइमिंग का भी बाद में असर होता है, जैसा मौका, जैसा ख्वाब और जैसा देखने वाला। क्या रात के आखिरी हिस्से में देखे कि ख्वाब कहते हैं वो सच्चे होते हैं? ये ज्यादा मतलब है कि वो माने जाते हैं असर वाले और सच्चाई की तरफ ज्यादा इन्हें करीब होते हैं। सर वो रात का वो हिस्सा है ना, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये कबूलियत की घड़ी रात के आखिरी हिस्से में आती है, रहमतों की हवाओं के झोंके ये रात को चलते हैं। अच्छा, नेक बंदे जो होते हैं वो उस टाइम पर जागे भी होते हैं, जैसे अवाम इसको तहज्जुद का वक्त बोलते हैं। अगरचे वो तहज्जुद का वक्त इसका होना जरूरी नहीं है कि ये तहज्जुद का वक्त यही है कि लास्ट नाइट पढ़े, लेकिन नेक लोग वित्र बचाएंगे कि भाई उठकर लेट नाइट पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह मतलब नेक लोगों की जब दुनिया सारी सोई हुई है तो नेक लोग उस वक्त अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, अल्लाह की रहमत खास मुतवज्जे होती है। फिर कुछ रहमत के फरिश्ते इस तरह के होते हैं कि जो रात के उस हिस्से में नाजिल होते हैं, उतरते हैं। तो यूँ वो घड़ियाँ जो है रहमतों भरी होती हैं। तो यूँ उस वक्त का ख्वाब जो है ना ये अहम माना जाता है। माशाअल्लाह। क्या ख्वाब की ताबीर पूछना जरूरी है? अगर कोई ना पूछे कोई जरूरी नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल ना पूछे तो कोई रज नहीं, लेकिन पूछना है तो फिर मुअब्बिर जो हो इस फील्ड का उसी से पूछे। ये जिससे इसको पूछते हैं ना तो वो कुंडा कर देते हैं बालों का, उसके मुंह से जो निकल गया, ये इम्कान होता है ख्वाब किसी को आपने सुना है उसके मुंह से कुछ निकल गया। अब जैसे ही कि मैंने ख्वाब में अपने आप को मुर्दा देखा तो बोला यार तू तो गया, अगर किसी ने बोल दिया तो ऐन मुमकिन है कि वो कबूलियत का वक्त हो और वो। तो इसलिए ख्वाब जो है ये अच्छे ख्वाब अहल को बताए, जो इसका अहल हो, लायक हो, उसको बताए, बुरे ख्वाब किसी को ना बताए। यहाँ या ताबीर मालूम करनी है तो सिर्फ जो ताबीर बयान कर सकता है, ताबीर ये जो मतलब फुटपाथ पे बैठे होते हैं जंतरियाँ लेकर, ये नहीं बताते, ना बाबा जी बता सकते हैं, हर पीर भी ताबीर नहीं बता सकता। इसके लिए कि ये फन है, मतलब अब जो बाज पीर होते हैं, बाज बाबा जी होते हैं, अब एक मोबा है, एक रुआब है, तो लोग इसको पूछेंगे तो ये अब ये बोलेगा मुझे नहीं आता, तो ये लोग बोले यार लोग क्या बोलेंगे। अब ये क्या अंधारे में तीर मारता है, ये गुनाहगार हो रहा है, क्योंकि इसमें ये ताबीर जो है ना इसकी अपनी मतलब शराइत है, ये फन है। चाहे वो पीर साहब ना भी हो कोई हर्ज नहीं है, इसमें आलिम हो, अरबी पर इसकी नज़र हो, अरबी अच्छी जानता हो और कुरान और हदीस की तफसीर शुरुआत पर भी इसकी नज़र हो और ताबीर के फ़न भी जानता हो। तो ये एक मतलब ये बाकायदा फ़न है। हर एक को ख्वाब पूछना भी नहीं चाहिए, हर एक को बताना नहीं चाहिए। मुझे भी लोग पूछते रहते, मैं मना कर देता हूँ यार मैं नहीं जानता, वाकई मतलब मैंने फ़न नहीं सीखा ख्वाब की ताबीर का। मैं मतलब अंधेरे में तीर मारूँ अपना इमेज बरकरार रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए, तो मेरे को अल्लाह ने इज्जत दी है बगैर ताबीर बताए, उसका करम है। मैं क्यों नाशुक्री करके झूठे रास्ते इख्तियार करूँ। और मैं लोग इतनी मोहब्बत करते कि मैं जो भी ताबीर बोलूँगा शायद एक तादाद भी देगी आंखें बंद करके इसको तस्लीम करेंगे, दूसरा को बताएगा जो वाकई सही जानता होगा उसको भी रद्द कर देंगे, नहीं फलाने भाई इलियास ने बताया, गलत नहीं हो सकता। तो इससे में मेरे लिए एहतियात बढ़ जाती है कि मैंने बिल्कुल साइलेंट जोन में रहना है, नहीं मालूम तो खामखा अपनी होशियारी ना करे। इसी में दुनिया आखिरत की भलाई है। हमें तो अपने रब से जो कुछ लेना है ना, जन्नत लेनी है ना, महबूब का पड़ोस भी लेना है, तो इसी तरह मिलेगी कि हम मतलब ना इसके बंदों को वो रास्तों से भटकाए नहीं, सीधा रास्ता दिखाए।
तो मुअब्बिर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के तो मदनी चैनल पर तो बाकायदा ताबीर का एक शोबा है, तो उसके ज़रिए मतलब ये कि हम मालूमात करते हैं। तो मेरे पास भी सवालात आ गए थे, तो मैंने अपने मुअब्बिर से रुजू किया, भाई ये तो इन्होंने मुझे जवाबात भेजे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो मुझसे बन पड़ा फिर अपने अल्फाज में मैंने आपको जवाबात दे रहा हूँ मैं, कि मेरा फन नहीं है। थोड़ा बहुत जब स्टडी की भी है तो यार मतलब हर बात याद नहीं रहती और ना इसकी ज़रूरत पड़ती। और खाली उर्दू की किताबें जो आती हैं ताबीर की, तो इसको देखकर ताबीर बताई नहीं जाती, क्योंकि आदमी की अपनी कैफियत, उसकी मतलब यानी कि शरीयत की पाबंदी उसकी कितनी है और कौन सा मौका क्या महल, तो हर एक ही ख्वाब आप देखेंगे उसकी ताबीर कुछ होगी, मैं देखूंगा इसकी ताबीर कुछ होगी, ये देखेंगे इसकी ताबीर कुछ होगी, ये भी होता है। तो इसलिए इसमें ताबीर बताने के उसमें आप नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं पढ़ना कि आप मुबल्लिग हैं, दाढ़ी मामा मुअज़्ज़ज़ आदमी है, माहल्ले के लोग आपसे मशवरे ले रहे हैं। अब किसी ने बोला कि हजरत को ये ख्वाब देखा है मैंने, आप यार इनको मना करूंगा तो यार ये तो सब मुझसे बदज़न हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम नरमी से प्यार से इनको बोल देंगे मदनी चैनल पर इसका सिलसिला और आप ये लो नंबर, फ़ोन पर नहीं बताते ये लोग ताबीर गालिबन, वो मतलब ये वहाँ भेज दो, तो ये जब सिलसिला आता है तो उसमें आपको बता देंगे, तो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताने ऐसा होगा तो कि बाज़ औक़ात नहीं भी बताते होंगे, कि बाज़ औक़ात ख्वाब ऐसे होते हैं कि उसका ताबीर ऐसी बनती होती होगी कि इसके मतलब है ना कि परख से उसको क्या उसके मतलब ये ना तोते उड़ जाएंगे, या अल्लाह ये बिल ख्वाब देखा। हो सकता है इसलिए भी ना बताते हो। बाज़ औक़ात ये क्या ये होता होगा कि आपने जो भेजा उसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं होती होगी, कुछ भी वजह हो सकती है, नहीं बताते होंगे, टाइम नहीं रहता होगा, इतने सारे ख्वाब आते होंगे तो नहीं बताते होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत ज़्यादा ख्वाब क्यों आते हैं? यानी कुछ लोग ये सब लगता है जैसे उठते हैं तो उनको लगता है कि यार किस ख्वाब को याद रखो ना। जैसे मिसाल है जैसे कि लाइन लगी हुई ख्वाब की, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, और वो लगता है यार मैंने रात भर इतने ख्वाब देखे। तो ये इतने सारे ख्वाब अगर किसी को आते हैं तो क्या मतलब इसकी कोई वजह है? ख्वाबों में ऐसा है कि मतलब जिनकी नींद कच्ची होती है ना, हाँ, बाज़ वक़्त वो भी, और टेंशन होते हैं तरह तरह के, कारोबार के, घरेलू झगड़े, इसके उसके, तो बारी बारी वो सब इसमें नज़र आता रहता होगा। कभी यूँ करता होगा, कभी और झगड़ा लोग तो लड़ाइयाँ करता होगा, तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता होगा ख्वाब में, पुलिस मारती हुई आँख खुल जाती होगी कि यार कभी ये कहाँ गया पुलिस वाला, ये होता होगा। मतलब तो बाज़ों को वैसे अच्छे ख्वाब भी ज़्यादा आते होंगे, ये अपने अपने नसीब की बात है। अच्छा ख्वाब अच्छी बात है, बुरा ख्वाब ज़रा तशवीश बाज़ वक़्त होती है, आदमी में परेशान हो जाता है। और हर वक्त उठने के बाद ख्वाब याद हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। जी जी जी, अधूरा क्योंकि ख्वाब में हवास मुज़महिल यानी मुंतशिर और परेशान, ये भी बिखरे बिखरे होते हैं ये ख्यालात जो है ना। तो ये मतलब कभी कुछ होता है, कभी एकदम सीन बदल जाता है, फिर किसी और मंजर में जा पड़ता है ख्वाब जो है, ये होता है। मतलब तो इसमें अच्छे ख्वाब अच्छे, बुरे ख्वाब बुरे। बुरे ख्वाब से बचने के लिए मतलब ये कि या मुतकब्बिरो 21 टाइम्स 21 बार ये रोजाना अगर सोते वक्त पढ़ लिया करें तो अल्लाह करेगा तो बुरे ख्वाबों से हिफाजत होगी। क्या झूठे शख्स को बुरे ख्वाब ज्यादा आते हैं? कोई जरूरी नहीं है। झूठा आदमी हो सकता है कोई बहुत सच्चा ख्वाब देख ले और उसकी काया पलट हो जाए, टर्निंग पॉइंट आते हैं बाजू का। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु अन्हु की जो तब्दीली का वाक़या बयान किया जाता है बाज़ किताबों में, वो भी ख्वाब ही के था कि क़यामत का मंजर आपने देखा था और फिर इसके बाद आपके हालात तब्दील हुए थे। और छोटी बच्ची का वाक़या, हालांकि उनके वाक़े में यहाँ तक लिखा है कि शब बराअत को भी माज़अल्लाह इन्होंने शराब पी थी, इबादत की तरफ कोई रुख ही नहीं था इनका। बच्ची एक फौत हो गई इनकी, बहुत प्यार था वो बच्ची, और उनकी दाढ़ी से खेलती थी और वो इस तरह का अपने किसी रिसाले में है। तो ये मतलब आखिरकार वो ख्वाब देखा, वो परेशान था, और जहन्नम का हुक्म उसको दिया गया, तो ये घबरा गया। फिर वो ठहरो इसकी कोई देखो कि कोई अमानत है या नहीं। फिर ये कि वो पता कहा गया कि इसकी बच्ची फौत हो गई एक। तो यूं मतलब उनके नेक अमाल तो बद थे, तो सांप एक पीछा कर रहा था भागते भागते उसके, और जहन्नम में गिरने वाले थे कि वहां फिर बोला कि इसकी देखो जरा कोई है कि नहीं अमानत।
नाबालिग औलाद का जो फौत होना है ना, ये माँ बाप के लिए बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ ये फौत होना इनका, जिसका इनको बहुत सदमा था, तो वो बच्चे फिर आई और वो सांप नुमा एक सांप इनका पीछा कर रहा था, बहुत बड़ा सांप, और ये भाग रहे थे, तो सांप को यूं करके बहा दिया बच्ची ने, और इनको अब्बू को बुला लिया और वो गोद में बैठ गई। और तो बोला बेटा ये सांप क्या था? वो आपका अमल, आप गुनाह थे आपके, ये आपको जहन्नम में डालने वाले थे, अल्लाह ने बरल करम किया। और ये इस तरह वो उठे तो ये इनको झटका लग गया था, और ये क्या इन्होंने तौबा कर ली और विलायत का आला दर्जा पा लिया। ये ख्वाब, अच्छा ख्वाब, एक तरह से अच्छा बुरा जो भी बोले इनमें मिक्स है, बुरा तो नहीं कहेंगे, डरावना ख्वाब था वो। तो ये कि इनकी इस्लाह का बाइस ये ख्वाब बन गया। अल्लाह चाहे जिस तरह चाहे जिसके लिए हिदायत का रास्ता अता फरमा दे। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ने नाम सुना होगा, मशहूर वलीउल्लाह हुए। अल्लाह इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत करे। अमीर अहले सुन्नत, मैंने एक टिकट देखा जिसमें लिखा था जुलूसे बेआत खातून जन्नत। ये इरशाद फरमा दें कि बेआत का मतलब क्या है? जज़ाकल्लाहु खैरन। जुलूस बयाद फातिमा, यानी फातिमा की याद में जुलूस। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि एक फर्द का 340 रुपये सदका फितरा है। पूछना ये है कि जो दारुल उलूम की तरफ से जो रहनुमाई मिली है वो 340 रुपये फी अफराद है, तो क्या ये पूरे पाकिस्तान वालों के लिए है या पंजाब वालों के लिए अलग होगा? जैसे कि खानेवाल, मुल्तान और साहिवाल, इधर उधर के जो अतराफ के जो गाँव हैं, शहर हैं, उनके लिए अलग होगा, या जो दारुल उलूम की तरफ से जो रहनुमाई मिली है 340 रुपये फी इस्लामी भाई या फी फर्द, वो ही सबके लिए एक जैसा ही होगा? रहनुमाई फरमा दिएगा। यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा रकम बनती है वो निकाली जाती है, ताकि वो कहीं भी कोई अदा करे तो इस रकम में सब जगह पर अदा बहरहाल हो जाएगा। अब अगर किसी के कंफर्म मालूमात है कि 140 ने 130 रुपये में हमारे यहाँ ये मिकदार पूरी हो जाती है, 340, तो 330 में वह मिकदार पूरी हो जाती है, तो वो 330 देगा, उसकी अपनी तहकीक है, तो कोई रद्द नहीं, उसका सदका फितर हो जाता है। और दूसरे मुल्कों वाले अपने अपने यहाँ के हिसाब से सारी दुनिया का तो नक्शा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ज़ाहिर कहाँ से पेश करेगा, कहाँ क्या भाव, इधर क्या भाव, करेंसियों के फ़र्क, नोट के फ़र्क, तो यूँ अपने अपने यहाँ की मालूमात के भाई वो ये 2 किलो में 80 ग्राम कम, 2 किलो में 80 ग्राम कम, ये मतलब गेहूँ, कणक, गंदुम जो बोलो इसको, तो ये एक सदक़े फितर की मिक़दार है। तो चाहे तो ये गेहूं दे दें इतने, या फिर इसकी रकम दे दें जो बनती हो आपके यहाँ। ये अच्छा, ये तो मतलब सबसे समझो कि छोटी रकम का एक तरह से फितरा है। इसमें दीगर भी हैं, जैसे जौ शरीफ का अगर फितरा देंगे तो 800 रुपये बनेंगे यहाँ के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के हिसाब से। खजूर शरीफ से फितरा देंगे तो 2400 रुपये बनेंगे। और अजवा खजूर से, अगर जो मदीने शरीफ की खजूर है और दुनिया की सबसे कीमती खजूर अजवा, तो अजवा शरीफ से अगर आप देंगे तो 14,400 रुपये एक का फितरा बनेगा। तो जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। डेकोरेशन में तो अपने घर में आदमी कीमती लगाते हैं ना, और किशमिश से देंगे तो 5,600 एक फितरा बनेगा। तो इंशाल्लाह आप जितना मतलब हो सके तो बड़ी रकम का दें। वो अल्लाह ने दिया है कईयों को, चाहे तो अजवा खजूर का फितरा पूरे घर का भी दे सकते हैं। ऐसे ऐसे हैं माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने इतना दिया है। वो ज़ाहिर बात जब एक सूट पीस लेने जाते हैं तो वो मतलब कि इतना महंगा मिलता है, तो पूरे घर वाले ले ही रहे होते हैं महंगे सूट पीस। अब जिस अभी आपने थोड़ी देर पहले हुजूर शादी का तस्करा किया ना, तो पूरी फैमिलीज़ की शादियों में पूरी फैमिलीज़ के सूट बनते हैं, कपड़े बनते हैं। जिनके यहाँ शादियाँ हुई उनको पता होगा, और जो ये बनाते हैं, सिलते हैं, सिलवाते हैं, सब इनको पता होगा कि ये कितने होते हैं। तो एक के पता 25-30 हज़ार रुपये का एक जनरल नॉर्मल सूट बन रहा होता है एक शख्स का।
تو یوں بھی عورتوں کے تو پھر الگ معاملات ہیں. تو یوں کروڑ روپے تو صرف یہ شادی کے جو فنکشن میں پہننے کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ کروڑ روپے کے بن رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسے گھرانے اگر کوئی ذہن بنائے کہ ہم یار سارا ہم نے مل کر اتنی شادی کروڑ روپے کی مل کر ہم اجوا کا یار فطرہ نہ دیتے پورے خاندان و گھر کا, تو کیا مامو زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, چچا زاد, یہ جتنے بھی ہیں بہت بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں. یہ ایک تحریک چلائیں, ایک مطلب ڈریس کوڈ بنتا ہے حضور, شادی میں نا ڈریس کوڈ بنتے ہیں, یعنی کہ اس موقع پر فلاں فنکشن میں سارے گھر والے ایک ہی جیسے کپڑے پہنیں گے, اس کو ڈریس کوڈ کہتے ہیں. فلاں فنکشن میں سارے گھر والے ایک ہی کپڑے پہنیں گے, وہ سب کو بھیجا جاتا ہے کہ ڈریس کوڈ کہلاتا ہے. تو یہ چلتے تو ہفتہ 10 دن تک سب ایک ہی جیسے کپڑے پہنیں گے پورے خاندان میں. تو یہ پوری تیاری ہوتی ہے, اس کو پوری پلاننگ ہوتی ہے. اگر زکوٰۃ کے نام پر, فطرے کے نام پر یہ خاندان پلاننگ کر لیں کہ یار ہم سب مل کر اس بار اجوا کھجور کا فطرہ دیا کریں گے, سبحان اللہ, تو مدینہ ہو جائے گا. دے سکتے, جن لوگوں کے لیے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں یہ دے سکتے ہیں. یہ سونے کا فطرہ دے سکتے ہیں, درست دینے والے ایسے بھی پڑے درست کا دیں گے نہیں. پھر وہ الگ بات ہے, نکاح کا الگ جوڑا ہوگا تو پہلی رات کا الگ, تو دوسری رات کا الگ, تو ولیمے کا الگ جوڑا, اور مطلب یہ کہ اتنے جوڑے الگ الگ ایک ایک دن کے لیے, ایک ایک رات کے لیے یہ بناتے ہیں, اور ایک ایک جوڑا یہ ہزاروں کا بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں کا بھی بنتا ہوگا. تو یہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی. صحیح کہہ رہے ہیں ہاں, تو یہ سب کرتے ہیں. تو 14,400 بتایا نا جی ہاں, اجوا شریف, تو یہ کیا مشکل ہے یار, 14,400 روپے. تو یہ الحمدللہ ہمارا بھی مطلب میرا اپنا فطرہ بھی سب سے قیمتی ہوتا ہے اجوا کھجور کا. انشاءاللہ میرا فطرہ ہوگا انشاءاللہ. میں بھی یہی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ اجوا کھجور کا فطرہ دینے کی نیت کرتے ہیں حضور؟ میرا اصل یار کسی نے بکنگ کر لی ہے بہت پہلے سے, کسی نے حاجی رضا کے تھرو کہلوایا کہ جو بھاری میں بھاری فطرہ قیمتی وہ میں دوں. تو وہ حاجی رضا نے کہا کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں, میں بھول گیا تھا. تو اب اجوا شریف کا کھجور میری طرف سے ہوگا انشاءاللہ. اگر نہ بھی دیتا تو میں دے دیتا اپنے پلے سے. میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, نہ میرا مطالبہ ہوتا ہے. بعضوں کا تو میرا دل اس میں تھوڑا مشوش تشویش بھی ہوتی ہے کہ اس میں مجھے اللہ ثواب سے محروم نہ کرے. اسلامی بھائی محبت میں, عقیدت میں دے دیتے ہیں, ورنہ یہ کہ میرے نفس پر گراں گزرے تو مجھے ثواب یا زیادہ ثواب کا یہاں ترتب ہوگا نا کہ 14,400 روپے میں پلے سے دوں, تو مجھے یہ تھوڑا فیلنگ ہوگی نا کہ اور اتنی رقم نکلی. اب آپ نے دے دیا 14 لاکھ بھی دے دیا, تو میرے اوپر کیا ہوگا, میرا بال بھی نہیں ٹوٹے گا, سمجھے, وہ نام میرا ہو جائے گا کہ اتنا قیمتی فطرہ دیا. تو ایک یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ ہے سارا نظام نہیں, لیکن اب پچھلی بار آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس میں کچھ کیا تھا, کوئی 15 شعبان میں, کہ بر وقت میں نے اس کی ترکیب کے کسی نے دے دیے, تو اس کو پھر میں نے, تو الحمدللہ ہم نے بڑھ بھی دیا, جو بھی رقم دی 37,500 بنتی تھی. جی ہاں بنتی تھی. تو یار اپنے کو پتا چلے گا کہ مطلب ہم نے دیا یار, اپنے جیب پر کچھ وزن پڑا, اپنے نفس پر وزن پڑا. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی بے پرواہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا وزن کا سچکا نہیں پڑتا, دے دیا. میں نے مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین, سوشل میڈیا وغیرہ جہاں ابھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آئندہ دیکھیں گے, سنیں گے, یہ میں نے جان بوجھ کے ایک سوال کیا کہ امیر سنت کون سا فطرہ, یعنی کس کا فطرہ دیں گے, تو آپ اجوا کھجور 14,400 روپے. الحمدللہ ان کو سن کر میں نے بھی نیت کی کہ میں بھی یہی فطرہ ادا کرنے کی میں نے نیت کی. اور یہ اس لیے میں یہ سارا یہ کر رہا ہوں تاکہ امیر سنت سے بھی محبت کرنے والے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ ثواب اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہم 14,400 روپیہ جو اجوا کھجور کا جو فطرہ ہے وہ ہم ادا کریں گے.
آپ کی پوری فیملی، اگر آپ پوری فیملی کا ادا کریں بہت اچھی بات ہے، پورے گھر کا ایک ہی فطرہ 14,400 ورنہ تو جو دے سکتے گھر کے اندر وہ دے دیں، ورنہ جو کشمش کا دے سکتے وہ دے دیں، جو کا دے سکتے وہ دے دیں، گندم کا دے سکتے وہ دے دیں، آپ دیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے افراد اپنے اپنی پوزیشن کے مطابق تقسیم کر لیں، سارا ایک ہی کم قیمت والا فطرہ کیوں دیں. ہم میں سے اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ لیں اور اچھے سے اچھا فطرہ اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دعوت اسلامی کو بھی دیں. میں تو دعوت اسلامی کے لیے بھی کہوں گا، ہمارے ماشاءاللہ مختلف مقامات پر ہمارے اب بھی بستے اور اسٹالز موجود ہوتے ہیں اسلام بھائی، ان کو جا کر فطرہ آپ جمع کروا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا اللہ پاک نے چاہا تو. حضور فطرہ عید کو ہی جمع کرانا ضروری ہے یا آج بھی جمع کروایا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، فطرہ ایڈوانس میں بھی دیا جا سکتا ہے. ابھی واجب تو یہ ہوگا جس کے صاحب نصاب پر، ہر ایک پر تو واجب نہیں ہے، تو یہ ہوگا عید الفطر کی صبح صادق کے وقت اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کا اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرہ اس پر واجب ہوگا. اور نابالغ اولاد کے بعد اگر اتنی رقم ہے تو اس میں سے بھی دے سکتا ہے نا، تو اس میں سے بھی دے سکتا ہے اور اپنے پلے سے بھی دے سکتا ہے. تو یہ کہ واقعی رائے خدا میں بس ہمارا دل بڑا ہو جائے نا تو دل کھول کے دینا چاہیے. قرآن پاک کے 4 پارے کی ابتدا میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں ہرگز کوئی اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے. مت کیجیے. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ وہ حقدار ہے اور کوئی اگر ناراض بھی ہے تو اس کو دینا افضل، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر بھی پہلے رشتہ داروں کو دیں اور وہ فطرہ یا جو بھی اس طرح کی چیزیں زکاتیں حقدار ہوا سامنے والا. ورنہ یہ کہ آپ کو سب سے دے کر بچے تو دعوت اسلامی کے دینی کام بھی آپ کے سامنے، ان کو بھی یاد کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My beloved Amir al-Sunnat, we have got some Islamic brothers from UK. They would like to ask the question. Afterwards, they would give you the Madni fees as well. Yes, Islami bhai sawal bhi puchenge, uske baad Madni fees bhi pesh karenge. The first question we would like to include. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Akif Siab Atari. I am from Jamiatul Madina, UK, and in first year. My question is, what is your favorite itar you like to wear? ٹرانسلیشن کہ عکیف نام بتایا ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ کون سی عطر لگانا پسند کرتے ہیں؟ دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. What's the Madni fees you would like to give? I would do 3-day monthly kafla every month. یہ جواب ہو گیا یوں، مطلب اسلامی بھائیوں ایسا دیوانگی والا جواب نہیں، وہ تو ہو گیا. دیوانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا یار؟ ہو گیا نا جواب. ان ایکسپیکٹڈ جواب ہے نا شاید. بیچارے کو کوئی جا کر لینا ہوتا ہوگا کہ یار وہ امیر سنت جو خوشبو لگاتے وہ خوشبو بھی مجھے چاہیے، تو اب تو یوں تو اس کو بھی نیت انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اچھا، اب آپ ان کا جیب کھڑکھڑائیں تو الگ بات ہے. بیچارے ویسے ہی عقیدت میں محبت میں پوچھ سکتے ہیں کہ یار ہم بھی پھر وہی خوشبو لگائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. اچھا یہ بھی سوال بھی یوں تھا، آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ یہ بیچارہ سوال یہ نہیں کیا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں. یہ منجا گیا لگتا ہے بیچارہ. ابھی بیچارے اسٹاپ ہو گئے. نو پرابلم، کیری آن. نو پرابلم. مجھے آپ کسی کی طرف سے تحفے میں خوشبو نہیں چاہیے، آپ بے فکر رہے. آپ انتظار نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں گے تو خوشبو لگاؤں گا. مجھے میرے پاس خوشبوئیں بہت ہیں الحمدللہ. اللہ آپ کو جزا خیر دے. جو دینا چاہتا ہے وہ خرید کر خود ہی لگا لے یا کسی سید زادے کو نظر کر دے میرے ثواب کی نیت سے. چلیے سوال کو ریفریز کر لیتے ہیں.
Which itar do you like to apply? निगरान शुरा ने रास्ता दिखा दिया ना। मैं एक खुशबू मेरी इस्तेमाल में नहीं है, और खुशबू में ये एक मतलब है क्वालिटी है कि एक चीज बार बार लगाएंगे ना तो बाद में नाक अट जाती है, खुशबू नहीं आती। दूसरे को आएगी, अपने को नहीं आएगी, क्योंकि खुद को मजा नहीं आएगा। बदल बदल कर खुशबू लगाएंगे तो खुद को भी खुशबू आएगी। तो मैं बदल बदल के खुशबू लगाता हूँ। और बोलो। बैरून मुल्क में एक जगह नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, तो यहाँ पर ये जानमाज देखिए, ये पूरा बाबे काबा के पूरी जानमाज पे छवि बनी हुई है, और इसी तरह इसके साथ एक और जानमाज है, उस पर मकाम इब्राहिम की छवि बनी हुई है, और फिर इस पर ये सेंटर में एक छोटा सा गुंबद खजरा की छवि बनाने की कोशिश की गई है। तो क्या इन जानमाज़ों पे नमाज पढ़ने में एहतियात करनी चाहिए, यानी यहाँ कहीं पढ़ ली जाए और इस पे ना पढ़ी जाए? क्या फरमाते हैं शेख, प्लीज़ बताइए। माशाअल्लाह, बिल्कुल अदब यही है कि इन पर नमाज ना पढ़ी जाए। अदब ये नाजायज या गुनाह मैं नहीं कहूँगा इसको, कि ये आम है, मतलब कि हमारे यहाँ मुसल्लों पर ये मुक़द्दस मकामात की तस्वीरें बनी होती हैं, इसलिए इसको मतलब इसकी जगह और किसी कपड़े पर या वैसे भी बिला हाइल ज़मीन पर सजदा के कुछ ना बिछाओ और सजदा करना, ये मुस्तहब है, ज़्यादा सवाब है, उस पर अमल करे आदमी। हर चीज़ पर अब तो मतलब मेरे को अब तो कुर्सियाँ ऐसी आई हैं वो देख कर काबा याद आ जाए। अब ब्लैक कलर और इस तरह इसका स्टाइल हो गया, आदमी मेरे तो काबे शरीफ का नक्शा बना हुआ है, इस कुर्सी पर भी लोग बैठते ही हैं ना। मुझे डाइनिंग टेबल होते हैं, इसके गिर्द इस तरह की कुर्सियाँ। तो ये अदब के मकाम, अदब की जो चीज़ें होती हैं वो अदब की जगह ही अच्छी लगती हैं। अब ये काबे शरीफ की तस्वीर या सब्ज़ गुम्बद की तस्वीर, ये जो फ्रेम करा के हम लगाते हैं ना इसको दीवारों पे, ये वहीं यही इनकी जगह अच्छी है, अदब की जगह है। माज़अल्लाह कदमों में बिछाना वो मुनासिब नहीं है। ये भी चूँकि इतना आम हो गया है कि इसको मतलब यानी कि मैं इसलिए मुत्तात अल्फाज बोलता हूँ, वरना ज़ाहिर के मैं अपने जज्बात तो मेरे लिए तो ये सख्त मतलब नापसंद है ये चीज़। मतलब कि यार क्या तुम लोग यार कभी तो दीवार पे लगाते हो, अगरबत्ती का धुआं देते हो, इसका एहतराम कर चूमते हो, कभी पाँव में बिछा देते हो और चढ़ के खड़े हो जाते हो, ये क्या करते हो? तस्वीर का एक ही रुख जो है वो सही है आपका कि आप इसका एहतराम कर रहे हैं, दीवारों पे इसको सजा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो यही आप करें, आपकी मेहरबानी होगी। बाद अब्बा नसीब फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन
अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 12 मार्च को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और दुरुस्त जवाबात देने वालों के नाम। सवाल, बीवी की ज़कात क्या शोहर के ज़िम्मा है? जवाब, नहीं। सवाल, क्या एक घर में एक से ज़्यादा मस्जिद बैत बना सकते हैं? जवाब, जी बना सकते हैं। सवाल, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बवक्त शहादत उम्र कितनी थी? जवाब, 56 साल। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: अब्दुल्लाह अत्तारी काजी अहमद से, अमीर हमज़ा अत्तारी लाहौर, मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी इस्लामाबाद, मोहम्मद अफजल मुजाहिद डेरा गाजी खान, बिनते मोहम्मद यूसुफ अटक, बिनते याकूब कोटली कश्मीर, बिनते अली मोहम्मद धनोट, उम्मे मुबश्शिर अत्तारिया औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान, बिनते मोहम्मद अरशद लाला मूसा, हाफिज़ कामरान अली डेरा मुराद जमाली बलोचिस्तान, बिनते अली रज़ा कराची, मोहम्मद सरफराज अत्तारी बिन मोहम्मद खादिम फैसलाबाद। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम: बिनते अली मोहम्मद धनोट, इनको तोहफे में 1 साल का माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आइए कुछ देखते हैं। मुबारक 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 मरहबा माहे रमज़ान, ऐ मोमिनो रब का तुम्हें मेहमान मुबारक। कहते हैं जिसे सब माहे गुफरान मुबारक। हाँ हाँ वो जो आया पस शाबान मुबारक। हाँ हाँ वो जो आया पस शाबान मुबारक, पस शाबान मुबारक। रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक। आइए कारकर्दगी देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक की मुख्तलिफ तहरीकें। 13 मार्च कुल नियतें इस्लामी भाइयों की तादाद 25,797, 25,797। इस्लामी बहनों की तादाद 13,481, 13,481। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 39,278, 39,278। 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 37,216, 37,216। इस्लामी बहनों की तादाद 9,948, 9,948। टोटल तादाद 47,164, 47,164। माह नेक अमाल में शामिल होने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 5,886, 5,886। इस्लामी बहनों की तादाद 6,586, 6,586। टोटल तादाद 12,472, 12,472। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी